Come, Veer. You will not say anything. I have a class. Okay? Hi, everyone. Thank you. Thank you. Hi, Dimpy. Hi, Sonam, Neenu, Meera Singh, Nikita. Hi, Ruby. How are you? Please bring Viru. Okay, Viru will come and say hi. Viru, come and say hi to everyone. What? You have to say hi. See, come close to me. Say hi. Hello. How are you doing? How are you doing? Happy weekend to all. Happy weekend to all. Thumbs up. Oopsie. Tell them to do Ho'oponopono. Do Ho'oponopono. It helps. It helps. Okay. Go and bring your purple handkerchief from the bed. Quickly, run and bring. I will. No, another one for your nosy. Yeah. Go quickly. Thanks. He will come and reply, Ruby. Ruchi. Hi. Hi from your daughter. Oh, thanks, Ashvi. Thank you so much, everyone. Thanks, Dimpy. He knows it. We have to do Ho'oponopono. Hi, Dimple. Superwoman of the universe. Yeah. Come here. Not this one, this Papa's. The purple one is on the bed. Your purple one, not this one. Okay, come. It has come out. Tell everybody I love you too. They said, Viru, we love you. Say I love you too. I love you too. Everyone. Everyone. But still you have to do you have to do Ho'oponopono. Ho'oponopono. How you have to do Ho'oponopono? Can you tell them? You know it. Can we sing together? I'm sorry. No. Please forgive me. I thank you and I love you. बोल दे. Nothing. No. You're going out. Tell them I'm going out. I'm going out. See you later. Take a bite. Come, take a bite. Coming. Okay, enjoy with Papa. Have a good time. Okay. See you. डिम्पल अभी उसने तेरा फेस देखा नहीं है. बाय बेटा, गुड डे. अदरवाइज उसने बोला था डिम्पल इज हियर. सो ही लाइक्स डिम्पल अ लॉट. ही हैज अ क्रश ऑन डिम्पल. Anyways, how are you all? I'm so happy. Yeah, thank you so much. Thanks everyone. Thanks Pallavi, Manifestation Queen, Shruti. Well, आज का टाइटल मैंने शेयर नहीं किया था, but now I think I should share it. Give me a minute. Hey Priya, how are you? After so long. I'm happy you have come with me in live. Today, at the end of the session, I'll take somebody live with me. ये Instagram का हमें फ़ायदा है कि we can take somebody live with us. Thanks, Shruti. And then you can ask your Chinu Mani Chaudhary. Yeah, of course, I'll take video request, but at the end, last के हम 15 minute में we will be doing it. Only if you have my topic concerned question, only then I will be taking it. Thank you for the hearts. Yeah, this will be recorded. No worries, Nikita. You can carry on with your work. No worries. It will be recorded. Last thing, I think something happened. I could not save it, or something happened. So we will be doing it. So don't worry about that. Great, Srishti. Hi. I'm also happy to see you all. I was wondering कि weekend पे which time suits everybody, because YouTube पे तो if I do it live in the night around 10 p.m. I touch wood, I get good people gathering is there, and then I was thinking one day should be a weekend.
Every detail of puja. Hi. आप लोग नाम कहाँ से ढूंढते हो इतने अच्छे अच्छे? Let more people join. तब तक मैं YouTube पे भी लाइव आ जाती हूँ. There are some people who doesn't have Instagram. Ruby is night. Even weekend you need night. I thought weekend everybody loves to go out, so they won't be happy to come in the night. So Nikita and Ruby, give me an answer. In the sense, weekend if I do night, don't you think people want to go out? 1 बजे के बाद सब फ्री होते हैं. पल्लवी 1 बजे मतलब वीकेंड्स दोपहर का 1 बजे. आज का टॉपिक है व्हाई डू वी अट्रैक्ट अनप्लेजेंट पीपल एंड अनप्लेजेंट इवेंट्स इन आवर लाइफ्स. आंसर सुन के हैरान हो जाओगे आप लोग. डोंट टेक इट योर हार्ट. यू मे फील दैट आई एम बिकमिंग अ बिट रूड, बट दिस इज़ अ रियलिटी. जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे रियलिटी, उतना जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. दैट इज समथिंग आई बिलीव. ओके पल्लवी, तो नेक्स्ट टाइम मैं 1 बजे के बाद का करूँगी. पल्लवी आप कह रहे हो 1 बजे एंड देन एवरीबडी विल से खाने पीने का टाइम होता है. दोपहर को सब फ्री होते हैं. आफ्टरनून नैप टाइम ऑल्सो गुड मैम, 3 to 4 फाइन. नेक्स्ट वीकेंड, सो वीकेंड्स का टाइम आई मे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग till the time I get a proper time. Weekday I've planned 10 p.m. It is easy. YouTube people are really available, happily available. So now I've come live on YouTube also. So it will go together hand in hand. It will be easier for me. Dimpy, you can keep a poll, ma'am. Majority chosen time. Oh, great. I'll do that, Dimpy. Thanks. I forgot that. I have done earlier also. I can definitely do the poll on Insta also, poll on YouTube also. Pakka, I'll do that. I'm happy to see you all 22. Did I miss anybody's question? Only for 5 minutes I'll take somebody live with me now if they have any question, because I have started a live on YouTube also. It is still showing me buffering. We can wait. I can start the topic together. So anybody wants to join in? Hi good vibes. Hi Bhumiksha, good to see you. So should I take? I have one video request from Chinnumani Chaudhary. Let me. Shri Lakshmi, you can ask me at the end of it, because I'm waiting for YouTube to start. Oh, Chinnumani declined. Fine. Shri Lakshmi, I'll take you. Shri Lakshmi, I have accepted your video request. Hi, how are you? I have seen you. Yeah, this is Shweta. Actually, my name is Lakshmi. At home, I'm called Lakshmi. Okay. And so I have taken Insta account on this name. It's okay. Just to follow you, and I'm taking notes. Good. How are you, ma'am? I'm fine. You tell me, how are you? Things are better now? It's becoming better, not coming on the track. Yes. Anything you feel like asking? This Hoponopo consistency only, ma'am. Yes, it works. Everything works, but thing is, we need to make it work. But that is something bigger limitation from my side. Putting the best efforts that I can. Okay, I'll share one thing. I have been doing with मेरे जो कोर्स के स्टूडेंट्स थे, मेरा फर्स्ट बैच था with them, and the first batch of 40 days of rigorous practice which I announced in January. So 40 days हमारे कल complete हुए हैं. So we have planned inner circle, in the sense all the students together. We have done another practice we have started. It's a regular religious practice of Ho'oponopono. उससे क्या होता है, when all are together in one link,
और सबको पता है कि 4 से 5 या 3 से 4, whatever time we decide together, we all are sitting together and doing chanting of Ho'oponopono for everybody's individual reasons for 30 minutes or 1 hour. I'm telling you, 40 days have given tremendous results to everybody in the group. So I have now, they have shared it on video. I'll be sharing it on YouTube. So उसके लिए I'm thinking something. मैं poll डालूंगी. That is a good idea. That I will start that live practice on YouTube also. So Oh, thank you. people know कि इतने बजे से इतने बजे हम live बैठ के ये करने वाले हैं. So they can join and do it. See, that is the only thing I can help with because हम लोग procrastinate करते जाते हैं. अभी बैठते हैं. मैंने 10 मिनट करी थी Ho'oponopono. मैंने खाना बनाते बनाते करी थी. मैंने वॉक जब याद आता है मैंने तब करी थी. No. जैसे 3 टाइम खाना खाते हो, ड्यूटी है आपकी, या आपने दवाई फिक्स टाइम पे खाते हो, ऐसे ये हमारी ड्यूटी है कि हमने फिक्स टाइम पे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी है Ho'oponopono करनी है. So I'll start on YouTube और Insta live कि रोज 1 घंटा या आधा घंटा हम बैठ के ही चांट करने वाले हैं. नो क्वेश्चन आंसर्स, नो नथिंग. And सारे आओ, ज्वाइन करो, चांट करो. I सॉरी. knowing Ho'oponopono, coming across this technique itself, miraculous thing, I believe. Knowing this technique itself is a wonderful thing that God has given us a chance to heal, given us a chance to eliminate these. I mean, at least उसका जो कुछ भी I mean consequences है कम के लिए God has given us a gift. But thing is, our demons in not They will not let us do it. But this is where we have to do. हम लोग भी नोट करना यार. एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, स्पेशली एक्सरसाइज करना है. अभी करते हैं, आधे घंटे में करते हैं, 5 मिनट करते हैं. ये सबसे बड़ा इशू हम सबके साथ है बिकॉज स्पेशली Ho'oponopono हमारा कंफर्ट जोन हमें टूटना पड़ रहा है. बट 40 डेज का जो ये हमारा फर्स्ट बैच था, आई एम रियली हैप्पी कि 40 डेज जो उन्होंने प्रैक्टिसेस करी हैं, भले वो हमने मनी मैनिफेस्टेशन के लिए करी थी, बट मनी के साथ बाकी सब हील हो रहा है. मनी तो आ ही रही है, उसके अलावा चीजें हील हो रही हैं. उसके अलावा वो इतने माइन्यूट लेवल पे दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एंजाइटी थी वो गायब हो गई है, या फियर एक था वो निकल गया है, या वे ऑफ किड्स ट्रीटिंग मम इज नाउ बेटर, और दे आर रिस्पॉन्डिंग इन अ बेटर वे, और यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग नाउ, नॉट रिएक्टिंग. तो आई एम हैप्पी कि वो एक बहुत माइन्यूट लेवल पे दे आर एक्सपीरियंसिंग चेंजेस इन देयर लाइफ. तो मुझे वो खुशी हो रही है. दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर. हाँ बोल. I can't hear you. I can't hear you. The sound is gone. Yeah, that, now say. that Now is you say. miracle, like experiencing small change and that This is what I really love to share with people कि वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि it is not the big things coming in your life. It is the process which is flawless and without any obstacle. That is a real manifestation. अगर आपका रास्ता aligned है और रास्ता आपका flawless चल रहा है ना, without any kind of obstacle, तो ये जो चीजें हैं जिनको हम मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं, घर बंगला गाड़ी लड़का शादी पैसे whatever, it falls into place automatically. अपने आप गिफ्ट आ जाती है वो. You don't have to ask for it. yes, true. Any small little experience you want to share, you have gone through, or Like you want to share with people? So much of pain, like leg pain उसको, knee pain था उसको. So I was pressing and I was saying, "Mommy, I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you for 5 minutes." Then I applied one Bengay का वो होता है ointment that is just to apply, you know. Then I applied it and she was like, "Chinnu, what you have done? The pain has gone, Tali. The pain has gone. I'm feeling so Oh happy." God. You did for your mother, Yes, I did for my mother. but what did you And think while doing it? I said that whatever pain she's experiencing, no, I'm sorry for that, and please make my mom heal through this. Okay, I was just saying random things. Ho'oponopono for 25 minutes I've done. I was also pressing her legs, and she slept. And in the morning she said, "Ki there is no pain. I'm feeling so happy. I'll go to school." Like she's a Teacher. days because of that knee pain. And next day she was like, "I'm okay. You know, I can't miss school and I can't miss." My students have to go to the school and I have to make them study. Then I told her to chant these 4 words. She's an ardent Hindu. She's like, "This is Christian words. I'll not." And a mommy, "This is not Christianity or something." She don't know They're what simple. in Telugu. Okay. She don't have videos regarding Ho'oponopono. Mm. She's like, "No, chanting some other prayers and all. I don't know. I'll chant my
prayers. So you make these 4 sentences in Telugu. Simple. Yeah. Okay, we can do this. Oh. Sorry, please forgive me. Shweta, these are not religion bound, right? No, ये तो 4 these- sentences हैं कर्मा रिलीजिंग के लिए. So I'm sorry in Telugu. Please forgive me in Telugu. I'm not putting any religion tag into this. Yeah. I'm sorry. It was my mom who It is misunderstood okay. about that. No, I understand. Old, I mean, Yes. बड़े लोगों को ये feeling आ जाती है Yeah. because बड़े लोग कट्टर होते हैं, religiously कट्टर होते हैं. So it is okay. You can उनको don't tell in this way कि it's a ho'oponopono prayer. तो वो सोचेंगे किसी फिरंगी की prayer है, किसी गोरे की prayer है और मुझे नहीं करनी. So give her these same 4 sentences in Telugu. तेलुगु में बोल Yeah. सकते. ठीक. हाँ कि मम्मा ये भगवान जी से आप सॉरी मांग रहे हो कि मेरे से कुछ गलत हो गया, मैं उसके लिए सॉरी मांग रही हूँ. अब that's it. क्योंकि आपको जो discomfort आ रहा है. I didn't know this. We can chant in Telugu, Of Hindi. I don't. course, you can anything. Sometimes I even say कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ होपोनोपोनो वर्ड भी बोल दोगे तो इट विल वर्क बिकॉज होपोनोपोनो का जैसे लक्ष्मी माँ का हम वी नो लक्ष्मी मीन्स सीधे पैसे दिखते हैं क्योंकि दैट वर्ड इज कनेक्टेड टू मनी सिंस चाइल्डहुड वी हैव सीन इट. तो ऐसे ही होपोनोपोनो इतने मिलियन लोगों ने प्रेयर कर लिया है कि होपोनोपोनो वर्ड का मतलब ही ये 4 सेंटेंसेस होता है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है. Ma'am, Ho'oponopo is also a mantra. Like we have many Vedic mantras, so Ho'oponopo is also one of Yeah, the. नहीं अब मेरी बात सुन. If you're using any one affirmation, I'm healthy. So this is your mantra. Achha. Mantra is nothing but any sentence you are using it for continuously for yourself is a mantra. Okay. Nothing else. Okay. ठीक है? Okay, thank you. Chal, enjoy yourself. I'll take another. Shruti. Shruti says, I want to share. Okay, Shruti, I'm accepting you. Shweta, you have to go out. I don't know how to take you out. 1 second, ma'am. It's okay. Hi, Shruti Doshi, how are you? Doshi means Gujarati. Came so. बस मजा मैम. आप कैसे हो? बहुत फाइन मजा मा. ओके मैम, आई हैव समथिंग वेरी गुड टू शेयर विद यू. Sure. आई जैसे आपने अपना लैपटॉप एक बार होपोनोपोनो से वापस आया. लिया था. आई यस, जहाँ पे आपने गाड़ी का कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर किया Yeah. था. हाँ, द सेम वे इवन आई हैव गॉट माई सेल फोन. Okay. तो ऐसा हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे और ओला में मेरा सेल फोन गुम गया था, मतलब रह गया था. सो ऊपर आने के 15-20 मिनट के बाद मुझे सडनली याद आया कि माई सेल फोन इज़ नॉट विथ मी. सो माई हस्बैंड इज़ लाइक तो अभी तो वो चला गया क्योंकि गाड़ी वाला ड्रॉप करके निकल जाता है. सो आई एम लाइक कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता. देन आई हैव सेंड दिस होपोनोपोनो प्रेयर टू माई सेल फोन के सेल फोन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ. यू नो मी वेरी वेल. मैं आपका कितना अच्छे से ख्याल रखती हूँ. मैं आपको रोज़ उसको प्रॉपर क्लीन करती हूँ, चार्जिंग पे डालती हूँ एंड यू आर एवरीथिंग फॉर मी. ऐसे मैंने उनको थोड़ा लव वाइब्रेशंस भी भेजे और होपोनोपोनो प्रेयर भी किया. यू वॉन्ट बिलीव मैम दैट गाइज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग ऑन माई सेल फोन. मतलब मेरे सेल फोन में मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया. तो स्टार्टिंग में जनरली क्या होता है, कोई फ़ोन करता है तो कोई भी बंदा लेके चला जाता है तो वो कट कर देता है. तो वो बंदे मेरा फ़ोन ढूंढ रहा था और वो मेरे हस्बैंड ने बात किया कि ऐसा आपके पास सेल फ़ोन है. तो बोला यू डोंट वरी, मतलब दिस हैपेंस आफ्टर 20 to 15 मिनट्स ऑलमोस्ट. तो उसने बोला आप डोंट वरी, मैं आपकी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपको सेल फ़ोन देना चाहता हूँ, लेकिन रात का 2 बजे का टाइम था तो किसके घर पे बेल बजाओ. सो आई वॉज वेटिंग फॉर यू डाउन ओनली. सो आप शांति से आओ और अपना सेल फोन लेकर जाओ. आई गॉट दैट माई सेल फोन विद दैट और उसमें पैसे भी थे जो वैसे के वैसे ही थे. उसने वो मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला. That's nice. Amazing. मतलब जनरली हमारी आदत रहती है ना वो कवर में पैसे रखने की कि हाँ चलो नीचे जाते हैं तो अपन. हाँ, सो दैट द सेम वे आई हैव कोटेड. या तो वही चीज़ हो गई. यस. That's nice. I'm happy. मतलब या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा होपोनोपोनो के साथ. एंड एवरी टाइम जब भी वो चीज़ करते हैं तो यस डेफिनेटली It works. Yeah. और करना चाहिए भी यार. Why not? You have to do it. एंड और दूसरा था मेरे हस्बैंड का फ़ोन ना चार्ज ही नहीं हो रहा था, उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी. ऑलमोस्ट ही विश टू चेंज हिज सेल फोन. तो वो एक दिन सेल फोन बंद हो गया, मतलब 2%, मतलब हार्डली जब ये चार्जिंग पे डालता है बैटरी को तो वो इट विल टेक 2 hours टू गेट 100%.
उसकी बैटरी को सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ओके तो मैंने उनका फ़ोन बिगड़ गया। मैंने बोला मैं आपका फ़ोन चालू कर सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ है। बोला क्या? मैं बोली आपको आपके फ़ोन के बारे में आप लास्ट 20 डेज से बोल रहे हो कि मुझे ये सेल फ़ोन नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे चेंज करना है। बोली इसके लिए आपका फ़ोन बिगड़ गया। फिर मैं बोली ठीक है, मैं एक जादू करके दिखाती हूँ। देन आई हैव डन दैट होपोनोपोनो। फर्स्ट आई हैव क्लीन दैट नेगेटिव इमोशन फ्रॉम दैट फ़ोन कि मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं लेकिन फ़ोन ऐसा नहीं है। आई रियली लव यू। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी लाइफ में रहो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे हमें गुड न्यूज़ सुनने को मिलता है। एंड आई हैव गिवन लॉट ऑफ थिंग्स टू दैट फ़ोन और हाथ में रख के होपोनोपोनो किया। टिल दैट टाइम आई थिंक 1.5 year हो चुका है, वी हैव नॉट चेंज हिज सेल फोन एंड द सेल फोन इज वर्किंग वंडरफुल। हेलो हेलो। आई हर्ड ओके हाँ अभी आपने इसको अभी समझा कि अभी तक वो नेगेटिव बोलते आए थे तो फोन का ऑरा वीक हो गया नेगेटिविटी से, इसलिए फोन का एनर्जी और, डिप्लीट हो गई। अब उसके ऑरा और को मैंने पॉजिटिव बोल के आपने क्लींस कर दिया और चार्ज अप कर दिया। हाँ यस, और मैंने उसको पूरा होपोनोपोनो किया। सेम वे उसका चार्जर पे बिगड़ गया था, तो चार्जर को भी किया, तो अभी भी वो चार्जर चल ही रहा है अच्छे से। तो दिस इज लेसन फॉर योर हस्बैंड जो आपको देना है कि जो चीज अभी हाथ में हाँ है उसको इज्जत देनी है और थैंक्स करना है, यस यस, नाउ ही क्योंकि भले नया अंडरस्टूड। फोन आई नहीं है बट इस फोन ने कितने काम हल करके दिए हुए हैं। या ट्रू चलो ट्रू ग्रेट, ट्रू। दैट्स नाइस, आई एम हैप्पी। लेट मी टेल, आई एम एंजॉयिंग द experience sharing with others. Let me ask if somebody wants to join and share experience. ठीक है? Yes, yes, Thank yes. you so Yeah, much. yeah, Thank you yeah, so yeah, much, yeah. Shruti. You have to disconnect. I doesn't know how to take out the Ah, participant. even I don't know. You Let me don't know? check. Okay, see. Yeah. It's okay till the time. So anybody else wants to share their experience, I'll be really happy to bring you online with me. Anybody wants to share? Anybody wants to share their experience regarding anything? Not Ho'oponopono. Whatever you have learned till now on the spiritual grounds, it can be Ho'oponopono, law of attraction, mental mindset, whatever you have felt, if you really want to share, I'll be happy to take you live with me. Dimpy and some. Let me take Dimpy. Dimpy, I have accepted your request. Hi, Dimpy, how are you? Hi, ma'am. I'm good. How are you? Very fine, see. Yeah, it's such a coincidence. Actually, I missed your live announcement Okay, and I just randomly took my phone and I saw your live. So I great. joined. And luckily, I'm in your So live sweet. also. Great. So, yeah, I just wanted to share one experience Yeah, that I did with pigeons, not with humans. great. So, what happened is in my hometown, Hmm. so daily, like 2 or 3 pigeons, we used to feed them. So they used to come to the window sill, we used to give food and they used to come. And I had always noticed like that pattern was, so both of them were partners. And they would not let any other pigeon to come and sit near them. So Okay, it was a general tendency. okay. तो जब भी वो आते थे, they would like just attack and सबको भगा देते थे. तो I would get very angry at times. कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? Like I've given enough food. मैं कभी-कभी I would throw water on them also. कि you also go. Then one day what happened? Same they are doing and one pigeon, it was constantly trying to come and sit. But ये दो उनको बैठने नहीं देंगे. So instead of getting angry, I started just telling them to those वो दो birds को, you are a loving bird, you are a sharing bird. Okay. You will understand that that pigeon is also hungry. Right. You are a loving bird. You are a loving bird. I just went on saying you are a loving bird. Suddenly I saw like after I think 5-10 minutes तो मैंने उसको बोला. Nothing happened. That bird was still attacking. Suddenly I saw that the third bird came and sat. Okay. And पता नहीं वो दो birds को क्या हुआ? They stopped reacting. वो जब भी resist कर रहे थे, like they were trying to attack. Yeah. Like kind of what happened, I don't know. They were like in their own mood. Okay. And वो third bird आया. वो third bird एक साथ बैठ के same plate से they started eating. वो दो birds एकदम शांत, like as if they did not even know that the bird has come. वो लोग पूरा
बैठ के वो पूरा जो खाना दिया था वो तीनों बैठ के फिनिश किए फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा ये अमेजिंग. सो इट वाज लाइक वेरी अमेजिंग कि इफ दिस वर्क्स ऑन पिजन्स देन हम ह्यूमंस क्या चीज है. नोट करना, एनिमल्स अपना कॉन्शियस माइंड नहीं लगाते. डू, डोंट, वाई, कैसे, क्यों नहीं होगा, मुझे कहाँ से मिलेगा, वो नहीं लगाते. तो दैट मीन्स वो ऑलवेज रिसीविंग मोड में है, अनकंडीशनली रिसीविंग मोड में है. दैट इज व्हाई दे रिसीव्ड इट सो क्विकली. सो एनिमल्स और बर्ड्स और छोटे बच्चे हम भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि उनके पास अपना कॉन्शियस माइंड नहीं है ना. वो तो सरेंडर वाले फॉर्म में और एक्सेप्टिंग वाले फॉर्म में है कि जो लाइफ में हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है ना. I'm happy. I'm really happy you shared it. Everybody must have enjoyed it. Any question you can ask me, then I'll take another person's experience sharing. If you have any question, you can ask. No questions as of now. Done. So sweet of you. Thanks for coming to live. Let me take somebody else's thanks. experience. Have a nice day. Yeah, thanks, ma'am. Welcome. Tone up. You have to. Okay, yeah. I've accepted tone up. So I'll take another question in between. Hi. आप लाइव आ चुके हो? हाय दीदी, How are कैसे हो you? आप? बहुत अच्छी हो. आप कैसे हो? हाँ, बहुत बढ़िया. मैं तो मतलब अभी भी तो होपोनोपोनो का ही रिजल्ट है कि आपने मुझे लाइव में ले लिया. Oh my God. तो होपोनोपोनो कर रही थी? हाँ जी, हाँ जी. ओनली 2 मिनट्स हुए. मैं तो अभी मैं यहाँ पे पीजी पे रहती हूँ ना, यूके में, उत्तराखंड में मैं पीजी पे रहती हूँ. तो अभी जस्ट मैं अभी लंच करके आई हूँ और मैं सोच रही थी यार दीदी का तो लाइव था, मैं तो लेट हो गई, पता नहीं वो है या चली गई. हाँ. तो मैंने बस एक या दो बार ही रिपीट करा है. मैंने कहा यार दीदी से आज मेरी बात हो जाती तो मुझे मजा ही आ जाता. थैंक यू सो मच भगवान जी. Welcome. और You're welcome. मजा आ गया नहीं? I'm happy. अच्छा वो एक बंदे ने शेयर किया तो I felt like let's do the sharing part. If they want to I'm share happy to. something. Yes, What you lots have? of मतलब Tell me. ईच एंड एवरी डे मैं एक ना एक चीज तो मैं ऐसे होपोनोपोनो से मैनिफेस्ट कर ही लेती हूँ. Example. अभी रिसेंट में ही मेरे 2 साल से एक एग्जाम पेंडिंग में थी. तो फिर मैंने आई थिंक 3 या 4 डेज ही मैंने होपोनोपोनो करा है, वो भी मॉर्निंग वॉक पे. और लिटरली वो 10 दिन में ही उसके क्या नाम है मेरे एग्जाम्स के डेट आ गए और वो भी दे दिया मैंने, एग्जाम भी हो गए. और फिर वो एग्जाम इतना टफ था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में आई थिंक अगर 100 लोग हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में तो उसमें से 2 to 3 पीपल का ही वो एग्जाम में मतलब मीन्स जो आंसर की है या फिर जो एग्जाम क्रैक करने का क्राइटेरिया था वो फुलफिल हुआ है. और मैं लकीली मतलब जिस शिफ्ट में थी वो इतना हार्ड था, वो मुझे भी देखने से लग रहा था. फिर उस ड्यूरेशन में मैं जिस टाइम पे मैं मैथ्स कैलकुलेशन कर रही थी उस टाइम पे मैं होपोनोपोनो कर रही थी. मैंने कहा गॉड यार जो भी हो रहा है वो सारी चीजें अच्छी ही होनी चाहिए. और एट लास्ट मैंने 2 डेज बिफोर में मैंने देखा आंसर की, मतलब मैंने उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया. ये मेरा होपोनोपोनो का मैनिफेस्टेशन मीन्स 100 आउट ऑफ में मैं एक सिंगल पर्सन ऐसी हूँ जो मैंने उस क्राइटेरिया को पूरा कर लिया. ये होपोनोपोनो का है. और होपोनोपोनो मतलब अमेजिंग रिजल्ट देता है. चाहे आप जो दीदी कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल मतलब कि इतना मैजिक रिजल्ट देता है ना, मुझे ये तो बिलीव ही नहीं होता. पहले जब मैंने दीदी को सुनना शुरू किया था ना तो मुझे नहीं लगता था. फिर चीजें जब डाउन में चली जाती हूँ ना तो फिर मैं होपोनोपोनो करना स्टार्ट करती हूँ. थोड़ा डाउन तो फील आता है. जो आपकी वो टैब वाली वीडियो थी ना, सेम ऐसी ही मेरे साथ इंसिडेंस हो गई कि मैं ऑटो में ना अपना लगेज रख के भूल गई. मेरे पास 2 लगेजेस थे तो एक मेरे पास में ही रह गया और जो मेरी कैरी पिट्ठू बैग थी ना वो ऑटो में ही छूट गई मेरे से. और फिर मैं बिल्कुल सुबह के टाइम पे मेरी छूट गई. लगभग ये 1 मंथ बिफोर की ये वाली स्टोरी है और ये लखनऊ की बात है. और मैं स्टेशन पे ही छोड़ के चली जाती, मतलब ऑटो में ही छोड़ के चली जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं आता. फिर मैं जब घर पे पहुंचती हूँ तो मैं सोचती हूँ अरे यार मेरा तो एक बैग छूट ही गया, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ. तो फिर मैं पूरे टाइम में अप्रोक्स मतलब 1 आवर के करीब में मैं 12 बजे के करीब होपोनोपोनो करती हूँ. मैं बोलती हूँ कि यार प्लीज आ जाओ, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा कितना केयर करती हूँ. और फिर मैंने होपोनोपोनो करा और उसके बाद फिर मैंने बोला कि ओके नो इश्यूज, सारी चीजें मैं गॉड पे छोड़ती हूँ, भगवान जी पे. और मेरा काम क्या है कि मैं जा करके ऑटो स्टैंड पे पूछ लूंगी कि हाँ ठीक है मेरा कोई बैग है अगर आपके पास तो आप दे दीजिएगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि क्या होगा. बट इतना फेथ जरूर है कि मिल तो जाएगा. मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ और बार बार वो आपकी ना टैब वाली वीडियो मेरे मतलब माइंड में बार बार ऐसा बार बार कि दी ने तो बोला था कि हो जाएगा हो जाएगा और दी को मिल भी गया तो मुझे भी मिलना ही चाहिए. और एट लास्ट मतलब दोपहर के 12 बजे मेरा सामान छूट गया था
और मैं रात के 8 बजे के करीब में मैं अपना सारा काम खत्म करके, क्योंकि बहुत अर्जेंट वर्क था उस दिन, तो मैंने सारा काम खत्म करके 8 बजे रात को मैं बस मीन्स ऑटो स्टैंड पे जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि भैया, और मैं 12 बजे के करीब में मैं एक ऑटो में बैठी थी और मुझे कुछ भी नहीं पता है कि उसमें कौन बंदा था, क्या दिखता है, कैसे दिखता है, या फिर वो ऑटो सारी ग्रीन ही दिख रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस ऑटो में गई थी और इसी स्टैंड से मैंने बैठी थी। तो वो बोलते कि अच्छा क्या करूं फिर मैंने कहा कि पता नहीं, अगर आप किसी से पूछ लो। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कॉल लगाता हूँ। तो वो स्टैंड में जितने भी वर्कर्स थे उनको कॉल लगाते हैं। तो फिर एक बंदा आता है तो कहते हैं, वो कहता है कि भैया, और एक बंदा 12 बजे यहाँ से निकला था उसको कॉल लगा लो आप। तो फिर वो विद इन ये 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन है, तो वो उसको कॉल लगाता है और बोलता है हाँ हाँ भैया, मेरे पास ब्लू एंड ब्लैक में एक बैग है, छुट्टी हुई है। मैं कहती हूँ गॉड मीन्स मैं लिटरली, मैं तो एकदम शॉक हूँ। 10 घंटे का ड्यूरेशन, वो भी अगर कोई इतना बड़ा बैग और कॉस्टली बैग देखता है ना, तो उसको नहीं होता है कि हाँ ठीक है वापस करना है, नहीं करना है, या क्या करना है, और कितने लोग बैठे होंगे उस ऑटो में। तो मैं तो ये सोच रही थी, मतलब अमेजिंग इट्स अमेजिंग। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। एक तो देख फेथ हो गया, फेथ है, और सेकंड तूने एफर्ट किया, क्योंकि एफर्ट भी हाँ जरूरी है। ये नहीं घर बैठ के आप जॉब करते रहो और सारे काम आपके फिजिकल वर्ल्ड में हाँ हो जाएंगे, फिजिकल एफर्ट भी करना है। जो जो बेसिक स्टेप होती है ना, वो लेना इम्पोर्टेंट है। लेकिन कभी कभी एक्चुअली ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा से आता है, जब हम कभी लैग करते हैं ना, तो इतना क्यों ज्यादा, मतलब ऐसा माइंड बिल्कुल घूमने लगती है। आप जैसे मैं अटैचमेंट होती है ना, आपकी अटैचमेंट होती है, और नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव किसी भी तरह की फीलिंग्स की तरफ हम, जैसे कहते हैं ना, पानी ढलान ढलान, मतलब क्योंकि ओके। भाई अब एक कोई चीज ऊंची और नीचे है, तो ऑटोमेटिक हर चीज नीचे पहले जाती है, क्योंकि ग्रेविटी है। ऐसे ही हमारा दिमाग में ये है, नेगेटिव की तरफ हम अपने आप जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ एफर्ट करना पड़ता है, ये अपने आप जाते हैं। लेकिन एफर्ट एक बार कर लो, इतना कर लो कि तुम प्लेट्यू पे आ जाओ, और फिर तुम्हें नीचे नहीं गिर पाओगे कि तुम यहाँ आ गए, अब तुम फिसलोगे नहीं नीचे। तो ये प्रैक्टिस करने वाला टाइम है, इसमें लोग हार मान जाते हैं। ये प्रैक्टिस करके हमें ऊपर आना ही आना है एट एनी कॉस्ट। और मेडिटेशन हम कभी भी कर सकते हैं ना, जब या आप जब कोई और कुछ और एक्सपीरियंस है तो शेयर कर, बिकॉज आई वांट टू गिव मोर चांसेस टू अदर्स। यस, अभी भी एक्सपीरियंस है, मेरी सिस्टर का है, मैंने उसको बताया था। जैसे बहुत लोग नहीं फेथ कर पाते हैं ना, तो मैं 5 भाई बहन है, तो जिसमें से मेरी जो छोटी सिस्टर है, तो वो भी बाहर रहती हैं, वाराणसी रहती हैं। तो मैंने उनको बताया था कुछ चीजें, वो बहुत, जैसा जब इंसान लोनली रहता है ना, तो फिर वो अलग अलग टाइप का मतलब थॉट्स आते रहते हैं उसके माइंड में। तो कुछ चीजें मैंने बताई थी कि होपोनोपोनो करो, और फिर दी की वीडियोस देखा करो। तो हर आपको फॉलो करती है, तो वो आपकी वीडियोस भी देखती है। तो फिर उसके साथ भी सेम इंसिडेंस था कि उसने एक इंटर्नशिप में अप्लाई करा था, तो जिसमें 20,000 रुपीज मिलने वाले थे उसको। तो फिर वो मीन्स सिंस 6 मंथ से ना वो फंसा हुआ था। तो फिर वो बहुत ज्यादा ना डेस्परेट हो रही थी उसके लिए कि अरे यार क्या हुआ क्या हुआ, मेरे फ्रेंड सर्कल में तो सब लोग अलग अलग उस पर चले जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा पा रही हूँ जिसमें मैंने अप्लाई करा था। और उसमें आई थिंक वो बोल रही थी कि वो 8 फरवरी से उसने स्टार्ट करा था, और 21 फरवरी को ना उसका रिजल्ट आ गया था। और वो मुझे कॉल ओके, करके बोलती है कि दीदी दीदी, और ये सारा तो हो पोनो पोनो और मॉर्निंग वॉक का है, मतलब मजा ही आ गया। और उसमें भी दैट्स आपको नाइस। मतलब बहुत थैंक यू बोला कि दीदी यार ये तो प्रिया दीदी तो गजब ही बताती है। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि प्रिया दीदी का वाइब्रेशन इतना हाई कैसे है। उनकी वीडियोस अगर आप ऑफलाइन भी देख रहे हो ना, तो भी अलग ही वाइब्स आती है उनसे। तो वो बोल रही थी यार दी मेरी तो 20,000 रुपीज का मतलब हो गया। आई एम हैप्पी, और वेरी गुड वेरी गुड। एक्सपीरियंस है, मतलब ईच एंड एवरी डे। मतलब मैं एक मैं बार क्या हो आप रहा था, सबको रिक्वेस्ट करूंगी, 42 लोग हैं, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है कि मुझे देख के ही आ रहा है, किसी और से भी सीख के आ रहा है। हमारा एंड रिजल्ट का मतलब क्या है? हम सबकी लाइफ में चेंजेस आने चाहिए, और हम सब अपने अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस जब शेयर करते हैं तो सब लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इट इज नॉट जरूरी कि मेरे लाइफ पे आके मेरा नाम ही लेना है कि प्रिया तेरी वजह से हो रहा है। नहीं, मैंने उनका वीडियो सुना था, तब मेरे माइंड में क्लिक हो गया और मैंने ये किया, प्रिया हो गया। एक्सपीरियंस शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, मेरा प्रमोशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड? ठीक है? उससे क्या होता है, मेन क्या है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि छोटी छोटी चीजें हैं और हम प्रैक्टिस करेंगे डेली तो रिजल्ट्स अमेजिंग आ सकते हैं। सही ठीक है? बात।
है। ये तो बहुत मतलब होपोनोपोनो सबको करना चाहिए। और जब कभी डाउन आए ना, मैं अभी थोड़ा थोड़ा डाउन फील कर रही थी मॉर्निंग में, बट फिर जब मैं फ्री हो रही थी तो होपोनोपोनो कर रही थी। फिर आपका फिर दिमाग में मुझे आ रहा था यार 12 बजे तो दिए लाइव आने वाले, पता नहीं चले जाएंगे, मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर चलो मैं होपोनोपोनो कर लेती हूँ। दैट्स बहुत नाइस, एक्सपीरियंस, होपोनोपोनो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। करना चाहिए, जैसे ग्रेट। वो भी कर ले। मैं कहती हूँ जिसे फेथ नहीं आ रहा ना, वो भगवान जी को वो भी नहीं कर मानता, ले। किसी चीज को नहीं मानता, एटलीस्ट फालतू गप्पे मारने से अच्छा है ना 2 मिनट होपोनोपोनो ही कर लो, मजा ही आ जाएगा। Excellent, good. I'm happy you came live and shared. Let me take थैंक another यू सो person. मच फॉर गिविंग मी चांस। है ना? थैंक यू सो मच, आई लव यू। और I love you too. Thank you so much. ठीक है? So you will end yourself. मैं किसी और को लेती हूँ. If somebody ओके wants to ओके share. Okay? Thanks. So ओके it ओके, is Gertrude Meenu Kumari. Okay. जस्ट वेट अ Yeah. मिनट। सबको ढूंढने में टाइम लग रहा है. How to come out. ओके, किसी ने बीच में पूछा था कि मुझे किसी भगवान से कनेक्टेड फील नहीं होता तो मैं किसको सरेंडर करूं. Hello. हाय मीनू, हाउ आर यू? Hi, Priya. Thank you for adding me. Always I'm welcome. following you since last 3 years, and like my life, like I have majorly मैंने 2-3 चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करी है. अभी मैं रिसेंटली एक चीज बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरी सिस्टर का जॉब में लाइक शी वाज फेसिंग सम इशू. So she wanted to change the job. वो बहुत परेशान हो रही थी. So मतलब what I did, I simply wrote कि एक particular date मैंने सितंबर का लिखा कि इस दिन में she will be getting the offer letter. और ये मैंने 1 महीने के अंदर में 4-5 बार मैंने लिखी. एंड यू वोंट बिलीव, एक दिन बाद मतलब आई रोट आई थिंक 29th और 30th सितंबर, जस्ट नेक्स्ट डे मतलब शी गॉट द ऑफर लेटर. एंड मैंने उसको शेयर भी करा. मतलब आई हैव द स्क्रीनशॉट्स विद मी, मैंने उसको शेयर भी करा. शी वाज इन शॉक. आई सेड कि ठीक है, ये तुम भी फॉलो करो, मतलब ज्यादा ऐसे किसी को बोलना मत. बट दिस वाज समथिंग दैट वाज फॉर अस मिरेकल वाली चीज. एंड शी Excellent. Now, गॉट but द ऑफर लेटर. you have to tell me या what actually या worked in this practice of yours. So, What actually yeah, worked? so actually what worked कि I was not attached to the results. मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा anxious नहीं हो रही थी. Because अगर मैं उसको बोलती थी, she was very anxious कि ये सब चीज तो काम नहीं करेगा, मेरा इंटरव्यू काम नहीं कर रहा है, ये जो भी. But I was कि नहीं, ये चीज होगा, for sure होगा, मतलब she will be getting. मतलब उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कहीं पे, उसको ऑफलाइन बुलाया जा रहा था. She was not able to go because she was staying in Bangalore और वैसे करके. बट द थिंग इज दैट कि मैं अटैच्ड नहीं थी. आई थिंक दैट वर्क फॉर मी कि मतलब आई वाज व्हेनेवर आई Yes. वाज राइटिंग आई वाज वेरी पॉजिटिव फॉर दैट. And सो बट moreover, it रिगार्डिंग दिस, was not for you, it was for her. तो वो एक या अंदर इट से वाज, ना, जो अपने लिए होती है ना, वो अटैचमेंट इज टू मच फॉर अस. इट्स या लाइक जीने मरने का सवाल. बट या दूसरे के लिए इस लेवल की नहीं होती. थोड़ी सी होती है शैलो डेफिनेटली, शैलो लेवल पे, नॉट डीपर लेवल पे. दैट्स दैट इज व्हाट. एक्चुअली बट व्हाट. रिगार्डिंग दिस आई हैव अ क्वेश्चन कि मतलब वो तो ठीक है, बट द थिंग इज दैट राइट नाउ माय मॉम इज हैविंग सम इशू, मतलब फ्रॉम लास्ट 5-6 months, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. तो मैं साथ में नहीं रहती तो मुझे उतना दिखा नहीं. अभी राइट नाउ आई एम एट होम तो मुझे दिख रहा है कि मतलब शी इज फेसिंग समथिंग. तो ये होपोनोपोनो प्रेयर मैं डिटैचमेंट के साथ नहीं कर पा रही हूँ. मतलब द तो अब प्रॉब्लम आपने मतलब. डिटैचमेंट, ओके, इसमें डिटैच नहीं होना. इसमें ओके, ओके you have to heal yourself. ओके You as a daughter, you are feeling some kind of emotional discomfort when you see her physical discomfort. ओके हम कहते हैं ना, मम्मी का दुख नहीं देखा जा रहा, मम्मी के दुख से मुझे दुखी हो रहा है. या इफ आई एम स्टेइंग आउटसाइड इन द हॉस्टल, आई एम फीलिंग लिटिल डिस्कम्फर्ट कि यार उनको क्या हो रहा होगा, हाउ ही इज फीलिंग. हमारा ध्यान वहां रहता है. सो नाउ यू आर हीलिंग. what your intention will be, God, universe, whatever, I am healing the discomfort I am facing or going through due to my mom's health. मम्मा की हेल्थ की वजह से जो मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मैं इसको हील करने के लिए होपोनोपोनो कर रही हूँ. ओके सो पिक्चर इज क्लियर नाउ. सो तेरा वो ओके डिस्कम्फर्ट तू अपने लिए ठीक कर रही है, तो तेरा वो डिस्कम्फर्ट कैसे ठीक होगा? व्हेन शी विल बी फाइन. सो हर हीलिंग विल ओके स्टार्ट. ओके. So, Priya, one more thing I just wanted to ask कि if I have to take mom का तो it's on priority, but there is something on my personal thing और घर पे भी कुछ family issues है. तो whenever I'm doing the Ho'oponopono prayer, तो मुझे तीनों चीजें बोलनी है या फिर मुझे simply सिर्फ Ho'oponopono prayer करना है मतलब. अगर सब और अगर whenever I'm तुझे, writing, you have 4-5 things in your head, yes, so I'll share with one a technique with you. पहले पेपर पे लिखो, I okay, want to release
or dissolve this issue. I want to dissolve this issue. I want to dissolve this issue. I want to dissolve this issue. तुझे clarity मिल गई कि ये issues मुझे dissolve करने हैं. One thing is Okay. done. Now you will Okay. say, dear God or universe, I want to heal the discomforts I am facing through my family, through my mother, through my job, or through my paisa, or through my own body. अगर physical issues है, मुझे वो discomforts heal करने हैं अपने. That's it. Okay. ये मैं different word क्यों बोल रही हूँ? Because there are so many people who, when I tell them कि होपोनोपोनो करो for your karma releasing, for your karma healing, for your karma balancing, तो इसमें सब कुछ आ जाता है. But उनको रिलेट नहीं कर पाते, उनको कर्मा से ना वो फीलिंग नहीं आती. कर्मा इज मोर सत्संग वाला वर्ड. वी हैव सब ऋषि मुनि ये सब बोल रहे होते हैं. वी डोंट फील गुड कनेक्टेड. सो व्हाट एल्स? डिस्कम्फर्ट लाइफ में आ रहा है. तो डिस्कम्फर्ट किसी भी तरह का होगा, फाइनेंशियल, हेल्थ, पैसा, रिश्ता, व्हाटएवर. ओ ओनली 2 pieces. You will love it. 1 and 2. Thank you. Discomfort. Okay. So now you start writing because consciously you know मेरे पास ये 5 तरह के discomforts आ रहे हैं. फैमिली से, घर से, मम्मा की हेल्थ से, मेरी हेल्थ से, या मेरे पैसे से, या मेरे रिलेशनशिप से. रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत वाला, शादी, नॉन शादी, रिश्ता, व्हाटएवर. राइट दोस डिस्कम्फर्ट, टेल देम आई वांट टू डिसॉल्व देम, फाड़ के उसको फेंक दो. एंड नाउ यू स्टार्ट हीलिंग गॉड विद द इंटेंशन, आई वांट टू heal this discomfort of this and this. That's why I'm doing Ho'oponopono, so that these discomforts are dissolved. Okay. तो अब conscious So mind, I don't have आपके to conscious mind को repeat ये it every time. No, Every ये once time. intention once is okay. Okay. Honestly, Okay. intention भी बोलने की जरूरत नहीं होती. You as a human being, your heart, your soul knows what it is. At the end of the day, forgiveness is for what? For your own karmas you are doing. Forgiveness उसके लिए हो रही है. ठीक है? Good to go? Thank you, ma'am. Yeah. Always Thank you. welcome, darling. Always welcome. You will disconnect. I'll just take this girl. I think I forgot her. Yeah. Yes, Ruby, soul knows it. So somebody's okay. I'm sorry, that girl with gastro, I accept it. She can come. So somebody was messaging and saying कि मुझे किसी भी देवी देवता या भगवान से कनेक्टेड फील नहीं होता, इसलिए मैं होपोनोपोनो किसके लिए करूं? अपने लिए करो यार. आपको किसी भगवान के लिए कनेक्टेड फील करने की जरूरत नहीं है. ये नियम है, ये लॉज हैं. इसके लिए आपको आस्तिक होने की जरूरत नहीं है. आप बस लॉज को फॉलो. नास्तिक लोग भी तो ब्लूम कर रहे हैं. नास्तिक लोग भी तो जिंदगी अच्छी और बेहतर जी रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट स्ट्रांग है, उनके खुद के सिद्धांत बहुत स्ट्रांग हैं, एंड द स्टेप्स दे आर फॉलोइंग इन देयर लाइफ बहुत स्ट्रांग है, उनके डूज एंड डोंट स्ट्रांग हैं, उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, वो उस पे काम कर रहे हैं. तो कई बार नास्तिक लोग नोट करना अननोइंगली, ओह शी इज अनेबल टू जॉइन. एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर एनी एक्सपीरियंस? आई विल टेक देम इन. सो कभी कभी व्हाट हैपेंस इज कि नास्तिक लोग कभी नोट करना, आई नो फ्यू नास्तिक पीपल हु सेज वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन कर्मास. तो वो क्या बोलते हैं, अननोइंगली ना वो लॉज फॉलो कर रहे होते हैं. उनके अपने वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके लाइफ में डूज एंड डोंट्स की ये मैं एटलीस्ट ये नेगेटिव वर्क है मैं नहीं करूंगा, या मैं अपने नियमों को अपने बिजनेस में जो मैं लॉज बनाया उनको फॉलो करता हूँ स्ट्रांगली. यू विल कम टू नो बिकॉज अननोइंगली दे आर अलाइंड विद द नेचर, सो दे विल गेट गुड रिजल्ट्स. सो जिसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि मुझे भगवान जी पे कोई फेथ नहीं आता, इट इज ओके. यू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू लव योरसेल्फ, you start telling yourself, tell yourself कि I am healing and releasing my karmas and I am doing Ho'oponopono for myself. That's it, and it will give you results. Anybody else wants to share any experience? I'll take you in. Otherwise, let me share something else. Tone Up Makeup Studio. I think, okay, great. You did, I think. I did take you live if I'm not wrong. You have already come. मेरे पास इतनी एक्सपीरियंस है ना कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी. एक और बता दो.
एक और ये बताना ना, ये भी मेरी सिस्टर से रिलेटेड है और मॉम से रिलेटेड है। अभी रिसेंट में ये नवंबर का है कि मेरी सिस्टर का फर्स्ट मीन्स वो नीट की तैयारी कर रही थी, तो बट उनका इस साल नहीं हुआ था। फिर उन्हें एक कॉलेज में एडमिशन लेना था, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ में है वो। तो अब वहां पे क्या हो गई थी कि एंट्रेंस तो दिया था उन्होंने, बट उनका बहुत सारा वेटिंग लिस्ट आ गया था, मीन्स अभी तो कोई चांस ही नहीं थे। तो फिर सब लोग परेशान हो गए थे कि ओ नो यार, अब तो वेटिंग लिस्ट भी इतना सारा आ गया, अब कैसे हो पाएगा। और बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक साल तो ऑलरेडी नीट में दे दिया है और इस साल भी वेस्ट ही हो जाएगा, अब कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने ऐसे घर में बोला कि कोई नहीं यार, और जो भगवान जी चाहेंगे ना वही होगा, बस आप लोग ना ये बोलो कि इसका एडमिशन हो गया है वहां पे, और ये एग्जाम देने जा मीन्स ये कॉलेज जा रही है, और आप लोग ना प्रिपरेशन कर लो कि क्या क्या इसको देना है, लिस्ट बना लो, लिस्ट ऑफ, आपने बोला था ना कि जो चीज चाहिए उसके लिए लिस्ट बना लो। तो मैंने ये बोला था कि अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका हो गया एडमिशन तो इतनी जल्दी कैसे करोगे, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं वहां पे, और मम्मी आप कैसे कर पाओगे आप इतनी जल्दी, एटलीस्ट ना एक काम करो आप ना, जो जैसे अगर ये जा रही है तो इसके लिए ना आप कुछ कुछ लिस्ट बना लो, और रोज भगवान जी को बोलो आप कि थैंक यू भगवान जी, इसका एडमिशन हो गया है, और ये कॉलेज जा रही है, वहीं जा रही है, लखनऊ ही जा रही है, और उसी कॉलेज में जा रही है। फिर मॉम को बिलीव नहीं होता है, तो मैंने कहा कर लो ना यार, कुछ नहीं होता। तो फिर ये मॉम ने आई थिंक 2 या 3 डेज ही करा होगा, और मेरे भाई ने कॉलेज में जाके पता किया था, तो वो उन्होंने बोला कि अरे भाई, और मैं कहाँ से इसका एडमिशन, मॉम ने बोला था कि कोई नहीं, डोनेशन भी देना पड़ेगा तो भी मैं दे दूंगी, नहीं तो उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए इसको। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता है, तो मॉम एकदम परेशान हो गई थी मेरी। तो भाई को भेजी, बोली जाओ पता करके आओ। तो जाता है वो, और वो पता करता है, तो वहां पे जो एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उन्होंने ना लिस्ट ही दिखाया कि अगर आपकी बहन का यहाँ पे रोल नंबर है, तो इसके पीछे भी 10, इसके आगे 10 लोग हैं। तो एक बात बताइए, सीट है एक, और 10 लोग जब सीट में नहीं लेंगे, अपने सीट को रिजर्व नहीं करेंगे, तब तो आपकी बहन को मिलेगा। 10 में से 1 लोग तो कोई ना कोई तो कर ही लेगा। अब आपकी बहन को मैं कहाँ दूं, डोनेशन नहीं चलता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो कभी डोनेशन नहीं चलता। तो मेरे भाई को इतना बोल के उन्होंने मतलब ऐसा कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो फिर वो मॉम को बोलता है, तो मॉम फिर से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ मॉम आप कर लो, बस बस आप कर लो, मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। और मॉम आई थिंक 7 डेज ही करती है, उसके बाद वो मुझे कॉल करके कहती है कि अंशु, मेरा घर का नाम अंशु है, कहती है अंशु उसका एडमिशन हो गया। मैंने कहा ओ गॉड, मीन्स ये अनबिलीवेबल बात है ना, कि अगर एक सीट के लिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, हर एक लोग को ना गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए होता है, अगर एक सीट पे आगे 10 लोग हैं, तो कैसे ये मिराकल हुआ होगा पता नहीं। लॉजिकल माइंड हमारा कहते हैं ना, ये दिस इज लॉजिकल वही तो, माइंड। ये क्या लॉजिकल माइंड तो है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बट जब सामने एक दिख और रही टेक्निक है। बताती हूँ जो इसने करी है, बहुत अच्छी टेक्निक करी है। टेक्निक यही है, हम खुद से करते हैं तो हमें फेथ नहीं आता, लेकिन हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में करते हैं तो वो फेथ की जरूरत नहीं होती, आप सच में डिस्कस करने लग जाते हो कि अच्छा सुन, अगर हो भी गया एडमिशन तो तुझे पता है तेरे पास ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, तूने गिन के रखे हैं कौन से रखने हैं, वो अलग रेके में निकाल के रख, और ये एग्जैक्ट सामान शुरू में लेके रख, शुरू में खाने पीने का कुछ सामान घर से लेके जा, बाद में अपन ऐसे कर लेंगे। हॉस्टल की जगह तो देख ले, अपने को प्रिपेयर तो होना ही चाहिए। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग, अगर तेरे मम्मा से फोन पे डिस्कस किया, तो वो जो भी 5-7 मिनट डिस्कशन थी, वो 5-7 मिनट भी बहुत है, क्योंकि हमें किक यस। इन स्टार्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 68 सेकेंड्स चाहिए। 1.5 से 2 मिनट अगर हम किसी एक टॉपिक के ऊपर शेयर करते हैं तो वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता और ये है। सिर्फ ना ग्रेट। किसी एक चीज के ऊपर नहीं काम करता है, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द मीन्स पॉसिबल चीजें, इम्पॉसिबल कुछ भी लग रहा है किसी भी चीज के ऊपर। यहाँ तक कि जो हम कहते हैं ना कि यार इंसान को तो हम आवाज दे के बुला सकते हैं कि ए सुनो, लेकिन आप ना किसी भी, जो हम पढ़ते हैं ना साइंस में कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, दीज एंड दोज, बट नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती ना, लोग बोलते हैं कि कॉपी, बुक्स, पेन, इन सभी चीज में जान नहीं होती है, बट ये सारी चीजें भी हमारी बातें सुनते हैं। या अभी इन सबका लास्ट एनर्जी हो रहा है ना, एवरीथिंग इज मूविंग। अगर आप नाइट का साइंस पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि इवन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग इज एटम। एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मूविंग है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूविंग है मतलब मूवमेंट है, मतलब लाइफ है, मतलब वाइब्रेशन है, मतलब एनर्जी है। तो उसकी आप अपनी अपने स्किन का पीस भी काट के हम माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तो अंदर एटम है। प्लास्टिक का पीस काट के चेक करोगे तो वो भी एटम है। आप obvious- ग्लास का पीस का भी कॉम्पोजिशन चेक करोगे तो उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। तो एटम से ही हम सब बने हैं। तो जो हम कहते हैं कि भगवान सब में है, ये सच्चाई है, यस ये ऑल आर यस वन। ये सब
यस, अभी तो लास्ट नाइट का ही एक्सपीरियंस है। ये मेरा जो चश्मा है, तो इसकी जो कॉटन है ना क्लीन करने वाली, तो वो कहीं मेरे से मिस्ड आउट हो गई। फिर मैं एकदम से परेशान हो गई कि यार मैं किसी भी चीज़ से क्लीन कर रही हूँ, इसमें थोड़ी-सी स्पॉट आ जा रही है, फिर मुझे अजीब-सा दिख रहा है। तो फिर मैं अब सिर्फ मैं अभी लास्ट नाइट का ही था, तो फिर मैं बार-बार मैं गई, यार कहाँ ही तुम चले गए यार? मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, ऊपर से अपने साथ भी रखती हूँ, फिर भी तुम कहाँ चले गए? देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, बस ये स्टेटमेंट 2-4 बार ही बोला था और सुबह में ना ये बिल्कुल सामने ही मुझे दिखाई पड़ता है। मैं ग्रेट, कहती हूँ 4 बार तो मैं यहाँ से गई हूँ, फिर तुम कहाँ से चले आए यहाँ पर? तो फिर ये नाइस, चीजें है ना, और ग्रेट। हेल्थ पे भी बहुत होता है। इट इज लास्ट देयर, ईयर में इट इज देयर, इट इज देयर। हेल्थ पे ठीक है, भी बहुत काम अब मैं किया। लास्ट 10 मिनट ओके, बच्चे, आई टेक क्वेश्चन आंसर्स, ओके। सो स्वीट, थैंक बाय यू सो मच, बाय बाय। 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 हाय अर्शली, तेरे को मैंने देख लिया था, बस मैं हेलो नहीं बोल पाई, सो सॉरी। So few questions people have shared. One is my brother has just shifted to, हाँ भाई रूबी, it is 7th grade syllabus that we all are energy. Thank you so much वैन मैम। आप YouTube पे लाइव कब आओगे? एवरी वेडनेसडे रात को 10 बजे इज YouTube लाइव। छाया ने पूछा है मैम, माय ब्रदर शिफ्टेड टू कनाडा फ्रॉम इंडिया एंड ही हैज स्लीपिंग इश्यूज बिकॉज ऑफ इट, ही इज नॉट वेल, हाउ टू हील विद होपोनोपोनो और हाउ टू डू फॉर हिम, प्लीज गाइड। अपने आप करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अपने आप नहीं कर रहा है तो यू एज अ सिस्टर यू आर कंसर्न एंड यू आर फीलिंग सैड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू योर ब्रदर, आपको अफेक्ट हो रहा है, तो नाउ यू विल स्टार्ट हीलिंग द डिस्कम्फर्ट। डियर गॉड, वट एवर डिस्कम्फर्ट आई एम फीलिंग ड्यू टू माई ब्रदर्स हेल्थ, आई एम हीलिंग दैट एंड स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो फॉर हिम, इट विल वर्क। ठीक है, गुड बाय। बट मैम आई वांट टू फील कनेक्टेड विद गॉड। अब ये वांट टू कैसे होता है? once you start following a law and you start receiving results, automatic आपका faith बढ़ेगा भगवान के ऊपर, है ना? तो अब now you are creating a obstacle for your own self good vibes। पहले आपने बोला मुझे गॉड से कनेक्शन फील नहीं होता, इसलिए मैं होपोनोपोनो किससे करूं और क्यों करूं। अब आपको जब मैंने आंसर दिया तो आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे गॉड से कनेक्ट फील करना है। करने से नहीं होगा। when you are doing your deeds and you are already into the system and following the laws, ऑटोमेटिक फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। फीलिंग्स कई बार इमीडिएटली क्रिएट नहीं हो पाती हैं, कुछ चीजें आपको मैकेनिकल करनी पड़ती हैं, एंड देन स्लोली स्लोली यू गेट इनटू द होल सिस्टम, यू ब्रीथ इन द होल सिस्टम एंड यू स्टार्ट गेटिंग फीलिंग्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आज जो टॉपिक मैंने बेसिकली शेयर करना था वो ये था कि व्हाई वी आर अट्रैक्टिंग बैड पीपल, बैड सिचुएशंस, बैड इवेंट्स इन आवर लाइफ। हमेशा बैड चीजें होती हैं तो होती ही जाती हैं सीरीज में, क्यों होती हैं? सो अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। इमेजिन करके चलो कि हम सबके अंदर एक मैग्नेट है, वी हैव अ मैग्नेट इनसाइड, ओके। वो मैग्नेट हमारी जब थिंकिंग फीलिंग्स पॉजिटिव होती है तो ग्रीन मैग्नेट ऑन हो जाता है और वो एनवायरनमेंट से हर पॉजिटिव और हैप्पी चीजों को मेरे लिए अट्रैक्ट करके लेके आता है। हम रो रहे हैं, हम क्रिब कर रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं और हम कुछ भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, लेट डाउन फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो उस समय याद रखना कि ग्रीन बंद होकर रेड मैग्नेट चालू हो जाता है। तो अब रेड जब चालू हो गया है तो रेड अब आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में से नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर करके आपको देगा, आपकी फीलिंग से मैचिंग। अगर हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मींस लाइक अट्रैक्ट लाइक, सो अंडरस्टैंड मेरा इनर फीलिंग, अगर मेरे अंदर का मैग्नेट रेड ऑन है तो सिचुएशंस एंड लोगों में से, क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा दोनों है, तो आपका अगर रेड मैग्नेट ऑन है नेगेटिव फीलिंग्स वाला, तो आप अपने एनवायरनमेंट, सिचुएशंस और लोगों में से रेड ही अट्रैक्ट करोगे अपने लिए और वो सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। So whenever your red magnet is on, you have to be very careful। इसलिए कहते हैं माइंडफुल रहना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसमें रहोगे तो कॉन्शियसली अवेयर रहोगे, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप उसको फटाफट फ्लिप कर सकते हो पॉजिटिविटी में, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं जो भी फील कर रही हूँ ये अच्छा नहीं है, लंबा खिंच गया, रेड मैग्नेट ऑन हो गया है। अगर रेड मैग्नेट ऑन हो गया है एंड समय चलता जा रहा है, समय रुक नहीं रहा है, तो अगर मैंने अननोइंगली 2 घंटे बैठ के रो लिया है तो 2 घंटे मतलब 80 नहीं 60 120 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। सो एवरी सेकेंड काउंट्स। हर सेकेंड में जो
फील लिया, मैग्नेट ने वो अट्रैक्ट करके दे दिया। हर सेकंड में मैं जो फीलिंग बार भेजी, मैग्नेट अट्रैक्ट करके मुझे भेज दिया। सो इतने सेकंड्स, मैंने कितने 1000 सेकंड्स हो गए 2 घंटे में, मैंने इतने सारे नेगेटिव मोमेंट्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिए हैं। सो अननोइंगली यू विल बी फीलिंग दोज अनप्लेजेंट मोमेंट्स। सो दिमाग में ये अपने बिठा लो, कुछ भी नेगेटिव मेरी जिंदगी में हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरा मैग्नेट रेड ऑन है, याद रखना। Great. Okay. Did I miss somebody's question? Thank you. I want everyone to read Zero Frequency by Mabel Katz. Please read it, guys. Okay, Ruby, मैं भी पढ़ूंगी, मैंने नहीं पढ़ी है, but I do like Mabel Katz. आप उनकी वीडियो सुन सकते हो. She is 100% into Ho'oponopono. Thanks, Chaya. Yeah, great. Because everything is energy. Great. Thank you so much. Wednesday 10 p.m. is my YouTube live. रात का. So I don't think I left somebody's question. So I hope you have that understanding now. Magnets हमारे अंदर हैं, ग्रीन और रेड हम जो ऑन करेंगे वही चीज हमें लाइफ में मिल जाएगी. So now stop this thing very seriously. No need to blame others कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी रुक गई, उसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं मिला, उसकी वजह से मैं फेल हो गई, उसकी वजह से मेरी जॉब छूट गई, ये लोग थे इसलिए मैं दुखी हूँ, ये लोग हैं इसलिए मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा. Forget all those things, because the more you will do this thing, the more situations to blame others you will attract in your life. So I hope it helps. We were here. Oh, I came late, so okay, I'll end after 15 minutes. All good to go. वेनु कह रही है प्लीज रीड माय क्वेश्चन रिगार्डिंग जॉब. वेनु प्लीज कॉपी पेस्ट कर दे, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में वो सारे ऊपर चले गए. इंस्टा की टाइमिंग्स बताओ. इंस्टा मैं अनाउंस कर दिया करूंगी, बिकॉज इस वीकेंड पे, कमिंग वीकेंड में आई ट्राई अनदर टाइमिंग. श्रुति दी प्लीज मल्टीपल इश्यूज को सॉल्व करना हो तो कैसे एक साथ करें, फिर से एक बार रिपीट करिए. सब लिखना है और क्या था वो? कुछ नहीं लिखना. I am dissolving every discomfort I feel now. अपनी खुशी के लिए जो consciously याद है वो लिख लो. I am dissolving the discomfort given by family, given by my खुद physical body, given by parents, given by job or associates or outsiders, whatever. I'm releasing and I'm healing that with Ho'oponopono. So Venu कह रही है, how can I attract a particular job? I'm grateful for my current job, but I'm not happy with it. सुनना ध्यान से वेनु, आपने खुद ही आंसर दिया है. I'm grateful for my job, but I'm not happy with it. So आपका बेस बिलीफ नॉट हैप्पी है, तो समझ जाओ. बेस बिलीफ नॉट हैप्पी है तो क्या आएगा? नॉट हैप्पी अट्रैक्ट करोगे आप. सो ग्रेटफुल फॉर द जॉब, इसका मतलब आप दिल से नहीं हो ना, आप सिर्फ ऊपर से एज ए एक्टिविटी कर रहे हो. मैम नेगेटिव लोगों के इम्पैक्ट से कैसे बचे? अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके. जब आप अपनी हीलिंग और रिलीजिंग्स करते हो ना होपोनोपोनो से, तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. इंटरनली वी ऑल आर वन एंड वी आर डिवाइन एनर्जी ओनली. और डिवाइन एनर्जी वीक नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होती है और पॉजिटिव होती है. तो अब लेकिन डिवाइन एनर्जी को हमने वीक कर रखा है अपने विचारों से, अपने थॉट से, अपनी नेगेटिव फीलिंग से. तो जब हम होपोनोपोनो से, जैसे हम कहते हैं ना डायमंड के ऊपर, कोल के अंदर डायमंड मिलता है, कोल माइंस में है ना, कोयले की खान में हीरे मिलते हैं. तो वो बाहर से दिखने में वो कोयला दिख रहा है, हम उसे काला कोयला ही समझ रहे हैं, लेकिन वो है डायमंड, बिकॉज वो आत्मा परमा, वो खुद ही आत्मा है और परमात्मा है.
तो मुझे होपोनोपोनो से ये ऊपर की जो काली लेयर्स हैं मेरे थॉट फीलिंग की वो रिलीज करनी है ताकि डायमंड बाहर आ जाए। तो डायमंड क्या है? डायमंड की अपनी रोशनी है, राइट, अपनी शाइन है। सो डायमंड क्या है? परमात्मा है। तो जब मैं अपनी रियल सोल फॉर्म में आ जाऊंगी तो मेरा ऑरा अपने आप स्ट्रांग बन जाएगा, और जब मेरा ऑरा स्ट्रांग और पॉजिटिव बन जाएगा तो मैं नेगेटिव लोग अट्रैक्ट ही नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी में से नेगेटिव यहाँ गायब हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, और अगर वो हमारे क्लोज रिश्ते हैं तो वो बदल जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मैग्नेट को कॉन्टिन्यूसली ग्रीन कर रखा है, आपका ऑरा स्ट्रांग है। तो चाहते हुए भी आपके क्लोजेस्ट रिलेशनशिप वाले लोग भी अपना पॉजिटिव ग्रीन ही दे पाएंगे आपको, क्योंकि आपका मैग्नेट उस इंसान में से उसका ग्रीन खींच रहा है। तो वो इंसान आपको अच्छा ही बोलने वाला है, बुरा बोल ही नहीं पाएगा। ओके श्वेता साहू, आई होप इट क्लियर्स। Shikesh, thanks for your valuable time, energy, and information. Always welcome. I'm fine. Himani Verma official. Thank you so much. Venu. But when we aren't happy, pretending is also not right. Okay. Pretending हमें करनी है, because when we pretend, we learn. But pretending समझ के करनी है. Pretending समझ के प्रैक्टिस करनी है. You have to tell yourself why I am pretending, because मेरी पास नेगेटिव प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मुझे शुरू में प्रिटेंड कर करके अपने दिमाग और अपने दिल को बेवकूफ बनाना है, ताकि वो मेरे प्रिटेंड वाली एफर्मेशन या मेरे वचन, मेरे सेल्फ टॉक को सुन सुन के उसकी आदत बन जाए, और कुछ टाइम के बाद मुझे रियल में फीलिंग आने लग जाएगी। सो आपकी जॉब में वेनु अगर 4 चीजें अच्छी हैं प्रेजेंट जॉब में, तो आपको अपना 24 घंटे फोकस उन 4 चीजों में ही रखना है, आप तभी खुश रह पाओगे। आई एम ग्रेटफुल एटलीस्ट आई हैव अ गुड स्टाफ अराउंड। आई एम ग्रेटफुल एटलीस्ट दे आर गिविंग। यू शुड बी हैप्पी बिकॉज अभी आप जॉबलेस नहीं हो, चाहे आपको 10,000 मिल रहे हैं, बट आपके पास पैसे आ रहे हैं। दैट कंपनी इज पेइंग यू। वो कंपनी आपको कुछ तो वैल्यूएबल समझती है कि आपको जॉब में रखा हुआ है उसने, तो वो कंपनी आपकी वैल्यू समझ रही है, वो आपको पैसे दे रही है। इससे अच्छा ग्रेटिट्यूड क्या होगा? विद फीलिंग होगा ये ग्रेटिट्यूड, क्योंकि सच्ची मुच्ची पैसे वो दे रही है। अगर आज वो कंपनी आपको निकाल दे कि नहीं नहीं, यू आर नॉट वर्थ फॉर दिस जॉब, नॉट इवन फॉर 10,000, सॉरी वी डोंट वांट योर सर्विसेज, कॉन्फिडेंस जीरो है ना? अंडरस्टैंड दैट। So whatever 2-3 points are there good in the present job, दिल से थैंक्स करना है, उसको फील कर। नेगेटिव को तो हमने इग्नोर ही कर देना है कि अपन तो सोच ही नहीं रहे। दिल से थैंक्स करना है, इतना थैंक्स करना है कि विद द फीलिंग आई एम सो हैप्पी, मुझे अपनी नई जॉब में ये 4 चीजें तो पक्का चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन माई प्रेजेंट जॉब। When someone isn't happy, then this feeling of changing the job comes up. When someone isn't happy, what someone, तुम्हारा बॉस खुश नहीं है तुम्हारे काम से, लोग खुश नहीं है, उसकी वजह से तेरे को थोड़ी अपनी फीलिंग पे ध्यान देना है। You should be happy and convinced with your own deeds. I gave myself 100. अगर मेरा बॉस, मैं अभी अपनी बात करूँ, अगर मेरा बॉस मुझे अभी मना कर दे तेरा काम नहीं अच्छा, सी अगर मुझे अंदर से पता है, एवरीबडी ऑफ अस नोज व्हाट वी हैव डन रॉन्ग, हम इग्नोर करते हैं, वो अलग बात है। सो व्हेन आई नो कि जितना मुझे आता है, जितना मुझे नॉलेज है, और जितना मैं आसपास से पूछ के कर सकती थी, मैंने इस काम को 100% दिया है। और अगर मेरे बॉस को नहीं पसंद आया तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि मैंने अपनी औकात के हिसाब से 100% एफर्ट दिया है। फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, कंटेंटेड। बट अंदर पता है कि यार अगर मैं 2 दिन पहले काम कर लेती टाइम पे तो ये मैं और अच्छा कर सकती थी, मैं ऑनलाइन सर्च कर लेती तो मैं और बेटर कर सकती थी, या मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा किसी सीनियर के से हेल्प लेके प्रॉपर कर सकती थी, तो बॉस खुश भी होता और काम भी अच्छा होता। सो यू हैव टू चेक डीपर लेवल्स। मैनिफेस्टेशंस इज नॉट सब कुछ पका पकाया अच्छा मिल रहा है जी, घर, पैसा, गाड़ी, लविंग हस्बैंड, रिच रिच रिच, ये मैनिफेस्टेशन जिंदगी में नहीं है। दिमाग में बिठा लो ये। मैनिफेस्टेशंस आर योर प्रोसेस ऑफ लिविंग अ डेली लाइफ। आपका हर सेकंड, क्योंकि समय चलता जा रहा है। अगर मुझे आपके साथ बैठे हुए 1 घंटा हो गया है तो ये वाला 1 घंटा पास्ट है। हर सेकंड हमारा प्रेजेंट है, हर सेकंड हमारा प्रेजेंट है। तो हर सेकंड में हम क्या फील कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वाला प्रेजेंट सेकंड मेरा फ्यूचर बना रहा है। याद रख लो ये, इसको बहुत बारीक लेवल पे दिमाग में बिठा लो। अगर वो पर्सपेक्टिव तुम लोगों ने
समझ समझ के अपने आप को बोल बोल के तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, तो तुम भूल कर भी ना दुखी होगे, ना क्रिब करोगे, ना रोगे, ना प्रेजेंट चीज पे चिल्लाओगे या प्रेजेंट मोमेंट के लिए नेगेटिव बोलोगे। आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि हर सेकंड है मेरे पास, एवरी सेकंड दे, ये पल ही है प्रेजेंट पल, इसमें जो फील कर लिया वो आगे मिलने वाला है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि इस प्रेजेंट पल में पिछला रोना है कि अगले का डरना है, कि अभी मोमेंट में जहां बैठी हूँ, खाना खा रही हूँ तो खाने को एंजॉय करके थैंक्स कर लूं, पानी पी रही हूँ तो पानी को एंजॉय करके थैंक्स कर लूं, ग्लास को थैंक्स बोल दूं, पति को, ऑफिस को, माँ बाप को, सबको थैंक्स बोल दूं कि तुम्हारी वजह से पैसा है, उसकी वजह से ग्लास है, उस वजह से मैं ढंग का पानी पी पा रही हूँ। So every moment you have millions of reasons to be grateful for. तो प्रेजेंट मोमेंट पकड़ना सीख जाओ, तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। वो बड़े बड़े मैनिफेस्टेशंस के बिग बिग बैनर्स पे मत जाओ, अपनी लाइफ के हर सेकंड को खूबसूरत बनाओ, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लो, तुम्हारी जिंदगी, मैं कहती हूँ, परफेक्ट मैनिफेस्टेड लाइफ ऑटोमेटिक बन जाएगी। हिमानी वर्मा, I'm a big follower of law, but sometimes I also get disturbed, like anger issues, stress, etc. How can I? Ho'oponopono रूट कॉज निकाल देगा सारे, लेकिन प्लीज मैं अभी करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं तो करती रहती हूँ। अगर करते रहते हो तो रिजल्ट आते हैं। अगर मुझे 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो अपना वजन कम करना है, तो मुझे रोज डेडिकेटेडली 1 या 2 घंटे अपने शरीर की वर्जिश के लिए देना पड़ेगा। आई कैन नॉट से नहीं यार, मैं तो सीढ़ियों से रोज उतरती हूँ, मैं तो मार्केट भी वॉक करते हुए जाती हूँ, और मैं तो खाना भी कम खाती हूँ, तो मेरा तो वजन कम नहीं हो रहा। यू हैव टू गिव अ डेडिकेटेड टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर इशू। सो हो'oponopono should be a dedicated time every day for yourself. 15, 20, 25, 30, 1 घंटा। उसके लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। मैंने सोचा है अभी कब करती हूँ, आई शेयर इट, आई शुड स्टार्ट इन दिस मंथ इटसेल्फ, कि एवरी डे मैं लाइव आधा घंटा हो'oponopono मैं ही चांट करूँ बैठ के, सब लोग आओ और ज्वाइन करके चांट करो। आई कैन गिव माई हैंड टू यू इन द वाटर टू कम आउट। हाथ पकड़ के बाहर तो आपने आना है। अगर आप सोचो कि भैया आप तो ऐसे ही पानी में पड़े रहोगे और मैं आके उठा के बाहर लेके जाऊंगी या कोई और आके उठा के लेके जाएगा, नो। अपने जिंदगी के लिए एफर्ट आपको करना है। दूसरे रास्ता दिखा सकते हैं, रस्सी फेंक सकते हैं, डंडा दे देंगे, पकड़ने के लिए हाथ दे देंगे, पकड़ के तो आपको आना है ना बाहर। ठीक है हिमानी? That is why you have to accept that you are not happy and do ho'oponopono, asking sorry, please forgive me. Great, Ruby. Nice suggestion. About Anisha. Hello, ma'am. Sorry about late. It's okay. मैम जब हो'oponopono करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ, गुस्सा भी आता है, मुझे पता है वो वर्क कर रहा है, तो मैं सिर्फ सॉरी, आई लव यू और एक्सेप्टिंग माई सोल बोलती हूँ। क्या ये सही है? परफेक्टली फाइन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, चारों सेंटेंस बोलने हैं, रेस्ट इज ऑल फाइन। श्रुति, अग्रेसिव क्यों हो रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट इवेंट्स में क्लोजर नहीं किया था, और वो उन पास्ट इवेंट्स के क्लोजर ना होने की वजह से उन इवेंट्स की फीलिंग्स अभी तक स्टोर्ड है, आपने रिलीज नहीं की थी, माफ नहीं किया था, लेट गो नहीं किया था, और अब हम जब क्लीनिंग कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, तो वो इमोशंस आपके अवेयरनेस में आ रहे हैं। दैट इज इट, लेट इट हैपन। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल थॉट्स, ऑलवेज वेलकम। अश्विनी दी, ये लाइव सेव कीजिएगा। यस ऑफ कोर्स, आई विल बी वेरी कॉन्शियस दिस टाइम। दी, रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? रोबोटिक इनिशियल फेथ नहीं होता, कोई बात नहीं, डू फिजिकली, इट इज ओके, मैकेनिकली करो, कोई बात नहीं, करना तो शुरू करो। उन 50 एफर्मेशन में से 2 दिल से निकलेंगी, उस 1 घंटे में से 1 मिनट के लिए दिल से निकलेगा, और विद टाइम यू विल कम इनटू द प्रोसेस एंड इट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम हार्ट। सॉरी, it is okay, you can switch it off. I have enough of light. Ma'am, after doing ho'oponopono, I became more confused and questions my decision. Is it my mind pattern or negativity releasing? See, it is your Anisha, you are releasing your. हम जब ho'oponopono करते हैं, अभी आपको कंफ्यूजन्स बाहर आ रही हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पुराने टाइम की कंफ्यूजन्स पड़ी हुई हैं, निकलने दो।
उसका प्रेजेंट मोमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है, निकलने दो, ठीक है। दीदी आपने कार के लिए क्या किया था, बताती हूँ। मैंने कार, मेरे पास आई रिमेम्बर पापा ने मुझे जेन ला के दी थी, और स्किन कलर की थी, उनके फ्रेंड की थी, तो सेकंड हैंड मानो। एंड मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था, तो आई यूज टू ट्रैवल दिल्ली के अंदर ही, फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, वेस्ट से साउथ जाती थी, तो 1.5 से 2 घंटे लगते थे। और आई रिमेम्बर वो मेरा 1 महीने का प्रोजेक्ट था। तो 2 घंटे जाना और 2 घंटे आना, और गर्मियों के दिन होते थे, और शीशे विंडोज में क्लोज रखती थी, एसी चल नहीं रहा है, विंडोज क्लोज है, बाहर गर्मी है, पसीने मुझे इतने आते हैं कि वो ड्रिप 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 होते हैं पसीना, और मैं 2 घंटे कार को थैंक यू करती जाती थी, थैंक यू टू माई लग्जूरियस कार, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि मैं कौन सी कार में बैठी हूँ और मुझे पसीने आ रहे हैं और मैं गुस्से में हूँ, उसको नहीं पता। वो फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है, उसको नहीं पता कि मुझे पसीने आ रहे हैं, वो मेरी फीलिंग्स देख रहा है कि बड़ी खुश है अपनी लग्जूरियस कार में, इसका एसी इतना इफेक्टिव है कि इसकी ग्लासेस जो है वो फ्रॉस्ट हो रहे हैं। मैं ये बोलती थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय लवली कार, थैंक यू पापा फॉर गिफ्टिंग द न्यू कार, मजा आ गया, क्या इफेक्टिव एसी है, मेरे तो स्पेक्स ही सारे फ्रॉस्ट हो जाते हैं, क्या ठंडी हवा है, क्या खुशबू है, मजा आ गया। 2 घंटे मैं सिर्फ अपनी थैंक्स कार को थैंक्स और एफर्मेशंस करती जाती थी। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए एक दिन के, 1 महीना मैंने किया है, और मुझे कार मिल गई है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में से शायद मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 1.5 लाख बचाना चाहिए था, बट मुझे नहीं पता क्या हुआ, आज टिल डेट आई डोंट नो। आई सेव्ड 8 lakhs, 8 लाख मैंने बचाए थे, तो मैं होंडा सिटी लेके आई थी न्यू। सो इट हैपेंस लाइक दैट। दी आपने बीएमडब्ल्यू को कैसे मैनिफेस्ट किया? बीएम तो मेरी आप ऑटोमेटिक आ गई, मैं तो अपने अपने पे काम कर रही थी, मैं तो आई वाज जस्ट क्लींजिंग माई सेल्फ, और 2020 में बैठ के, क्योंकि मैं इंडिया में स्टक थी, वहां बैठ के मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी। मुझे नहीं याद है, वो मेरी फ्रेंड ने कहा है कि तूने अपनी लिस्ट में बीएम लिखी थी, मेरे को तो लग्जरी कार याद है, क्योंकि टेक्निकलिटीज मुझे कारों कारों का इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही लिख रही थी, तो लिस्ट में लिख दी थी। तो मैं अब मैनिफेस्ट स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के लिए वर्क नहीं करती हूँ, मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस रखती हूँ, ना पीछे ना आगे। और चाहत और गिफ्ट आ गई, चाहा और गिफ्ट आ गई, वो ऑटोमेटिक होता है। दी मैं होपोनोपोनो करती हूँ तो जगह अग्रेसिव हो जाती हूँ, तो अभी बताया तो है मैंने, हो जाती हूँ तो चीजें बहुत गंदी हो जाती हैं, तो मैं सिर्फ सॉरी एंड लव यू एक्सेप्ट माई सेल्फ बोलती हूँ। मैंने बताया तो अभी श्रुति, रोबोटिक। अच्छा ये पीछे कमेंट्स पीछे चले गए, ग्रेट। I didn't listen to Ho'oponopono consciously. I played it in the background while doing my course and it did wonders for me. Great. मुंह से बोल के करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। So I think I am overdone with my 1 hour of live. So let me see you on the next Saturday. मैम एवरी डे का प्रैक्टिस स्टार्ट करो ना लाइव ऑन यूट्यूब। श्रुति मैंने यही तो अनाउंस किया है अभी। एंड मैम I do every activity, whatever you say in videos, and results are amazing. Great. M-N-E, Mensha, M Nisha. If you have your some results, whatever results, please share in writing or in video or come in the live. Saturdays I will try and take half live and half I'll take you people live to share your stories. Okay. मैम होपोनोपोनो 1 मंथ किया मैंने, टॉक्सिक इन लॉज हमेशा के लिए दूर हो गए, बट अभी भी आसपास कुछ नेगेटिव लोग आते रहते हैं, तो कीप क्लींजिंग योरसेल्फ, नेवर स्टॉप होपोनोपोनो इन योर लाइफ, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ टिल इटर्निटी। Kanika, gratitude always, thank you so much. Ma'am, my parents are searching the perfect partner for my marriage from past 2 years, but they are not successful. How to help them and myself to them and myself to attract the best one for myself? Ho'oponopono is the key to start with. रास्ते खुलते जाएंगे। मैम EFT टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं? Oh, I'll do it separate video on that. Love you too. Thank you, D. Love you. Thank you. Megha,
Okay, last person I can take Megha for a minute and then we will end. Okay. Come, Megha, I have accepted your. Are you there, Megha, darling? Accept. If she's not accepting, then I will end it now. Okay, Mini, आप आ जाओ. Megha is not coming. मैम सितंबर मंथ की हीलिंग सेशन वाज अमेजिंग. आई नो दैट. वो दोनों आ गए हो. आई लाइक इट. मैम हाय, हाउ आर यू? Hi. I'm good. I'm good. How are you? All fine. Share what you Yeah. want to share. एक जन आप. हाँ, perfect. You can share. The other, I don't remember the other name. She can mute and then she can say. Yeah. ओके सो ये जून या जुलाई की बात है और क्या हुआ था कि आई स्टार्टेड डूइंग होपोनोपोनो एंड मैं साथ में हनुमान चालीसा भी करती थी. आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन. तो मैं दोनों साथ में करती थी. अब क्या होता था कि जब ऑफिस जा रही होती थी तो मैं होपोनोपोनो बस ऐसे लगा करके मैं सुन लेती थी क्योंकि आपकी वीडियोस में मैंने वो एक स्टोरी मतलब आपने बताई थी कि आप अपनी मेड को बोलते थे कि ये लगा के रखो एंड उसके साथ भी सब अच्छा हुआ तो मैं वो करती थी. अब क्या हुआ पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया. मैंने सोचा कि मैं पेपर डाल देती हूँ ऑफिस में रेजिग्नेशन डाल देती हूँ और मैंने डाल दिया. एंड मेरे पास कोई ऑफर भी नहीं था एंड आई वाज नॉट स्कैर्ड अबाउट इट. आई वाज लाइक कि मुझे मिल ही जाएगा. पता नहीं क्यों वो एक मैं बहुत डरपोक लड़की थी बहुत ज्यादा और पता नहीं कहाँ से आया ये. फिर उसके बाद मैंने डाल दिए पेपर्स. फिर उसके बाद 2-3 महीने तो मैंने जॉब ढूंढी और जब लास्ट डे हो गया ऑफिस का तब और ये भी था कि ऑफिस वाले ऑफर कर रहे थे मुझे 30% हाइक बट मैंने लिया नहीं वो. और मैंने फिर लास्ट डे हो गया ऑफिस का और फिर फ्राइडे को लास्ट डे था. सैटरडे संडे मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया था कि मिलेगी जॉब तो ठीक है नहीं मिली तो भी ठीक है. और फिर उसके बाद सैटरडे को जो जॉब दिया मेरे को जॉब मिल गई वो. और मुझे उसके बाद 100% हाइक मिली सैटरडे वाले इंटरव्यू में और जो संडे को इंटरव्यू दिया उसमें 150% हाइक मिली. तो जो 30% हाइक थी वो मैंने छोड़ा. मतलब मेरा मेरा मानना ये है कि वो जो पोनो पोनो किया उससे मैंने एक इस जॉब को जो मेरा कंफर्ट जोन था उसको रिलीज करा. और जो 30% हाइक थी जो अगर मैं ले लेती तो मैं शायद मैं उसी कंफर्ट जोन में रहती लेकिन मैंने नहीं लिया. तो मुझे और अच्छा रिजल्ट मिला और मैंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ मुझे इतना पैकेज चाहिए. मैंने ऐसा ऐसा कभी मेंशन नहीं करा कि मुझे यही चाहिए. ऐसा कुछ नहीं करा एंड एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर मी. एंड जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी जो भी टॉक्सिक लोग थे वो भी मेरी लाइफ से हटते गए. तो मेरी लाइफ में सब बहुत अच्छा हो गया है. और हाँ ये है Excellent. कि टाइम लगा मुझे 6 महीने लगे. और अब पहले जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई थी तो एक है फैमिली के एस्ट्रोलॉजर तो उनको अपनी कुंडली दिखाई थी हाथ वाथ भी दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी लाइफ में. लेकिन अब वो अगर मेरा हाथ देखते हैं या मेरी कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं कि जितनी प्रॉब्लम आनी थी तुम्हारी लाइफ में सारी आके चली गई. अब तुम्हारी See? लाइफ हाँ अब वो ये See? कहते हैं. अब मैं किसी चीज के बारे में सोचती नहीं कोई प्लान नहीं बनाती हूँ अब. और मैं ये कभी भी प्रे नहीं करती हूँ कि हाँ मेरे साथ जो हो अच्छा ही हो. आई एम लाइक कि ठीक है जो होगा वो अच्छा ही होगा इतना तो मुझे पता है. एंड आई जस्ट Perfect. प्रे फॉर वॉट आई लाइक थैंक गॉड फॉर वट एवर आई हैव. Right now. And that is amazing. और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें रोकता क्या है? हमें अननोन का डर रोकता है नेक्स्ट स्टेप पे हाँ जाने के लिए कि जॉब हाँ नहीं है, उतने पैसे की ना मिली तो किसी ने मुझे नहीं उतना लायक समझा तो कम से कम मुझे समझ तो रहे हैं, 30% दे तो रहे हैं तो यहीं रुक जाऊं. तो हाँ वो इसे कहते हैं हिम्मत का कंफर्ट जोन तोड़ना और नेक्स्ट स्टेप बिना हाँ आगे दिख नहीं रहा कहाँ जाना है लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेप लिया फेथ में. आई एम टेलिंग यू तभी जैकपॉट मिलता है. आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड दैट एडवर्टाइजमेंट थम्स अप की डर के आगे जीत है. बट दिस इज द रियल फैक्ट. डर के आगे एक्चुअली जीत है. So you have to breathe through that fear and move एंड ahead with the trust. एंड Great. व्हाट आई फील
कि जो लोग मेरी लाइफ से गए, जो जॉब मेरी लाइफ से गई, मतलब दैट वाज नॉट सर्विंग मी, सो दैट लेफ्ट ऑटोमेटिकली after doing Ho'oponopono and Hanuman Chalisa that I was doing all together. और Great. इसके अलावा मैंने मेडिटेशन भी ज्वाइन करा, तो मेडिटेशन भी कर रही थी मैं, उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। Definitely तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू do it. लाइक मेडिटेट एंड मतलब उससे सच में बहुत मन शांत होता है, एंड दैट्स एंड दैट हेल्प्स यू टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन। एंड Yes. उससे ये होता है कि हम अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग स्लोअर, जो ओवर थिंकिंग होती है उसमें बहुत हेल्प मिलती है। एंड हाँ, ये है कि Ho'oponopono had put me in the right track and I am still in the right track. Although I don't get time right now to pray every day, but I'll still do this कि अगर मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, अगर ठीक है अभी I don't have time to shower and do Hanuman Chalisa and everything, but I'll play it in the background Good. until I get time in the afternoon to shower and do Good. everything. Yeah, Excellent. so even if you're not consciously listening to it, just play it in the background. I Play would it suggest. because at least your mind will not go haywire. Your thoughts will Yeah, not go haywire. कहीं पे तो आप stick yeah, रहोगे ना. This is a yeah, brilliant thing, and I'm really happy that you shared it with people. yeah. And Something very interesting last, came in my mind and I forgot. Share. Maybe I'll remember. one last thing that उस टाइम पे जब मेरी जॉब जाने वाली थी, तो मुझे ये लग रहा था कि ओ माय गॉड, तब एक ये फियर फैक्टर था कि जॉब चली गई तो हाउ विल आई सर्वाइव, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं थी उस टाइम पे, मैं बाहर थी, पुणे में रहती हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ कि एंड आई वाज थिंकिंग मुझे ऐसा वर्क फ्रॉम होम ही मिलना चाहिए, एंड ये सब भी मैं सोच रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, विल सी। और उस टाइम पे मेरे को ये लग रहा था, मैं भगवान से प्रे कर रही थी, मैं बोली थी कि अगर आपको जॉबलेस रखना है तो आप जॉबलेस रखो, जॉब दिलानी है तो आप जॉब दिलाओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है कि मैं तो भाई कुछ दिमाग से अपने छोटा ही सोच पाऊंगी, कि इंसान की तरह ही सोच पाऊंगी, True. और उतना ही एक छोटा अमाउंट ही मांग पाऊंगी कि हाँ मुझे इस महीने के लिए आई नीड 80,000 अपने एक्सपेंसेस के लिए, या जितना भी मतलब जितनी मेरी सैलरी True. होगी मैं उतना ही मांग पाऊंगी। बट मैं कोई अमाउंट नहीं कह रही हूँ कि मेरे को चाहिए, आप अपने खजाने में से मेरे को निकाल के दो। मैंने ये कहा। Excellent. Amazing और word. और मेरी जॉब जब गई तो फिर पता नहीं इतने मल्टीपल सोर्सेस से मेरे पास पैसे आने लग गए, और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे मेरे पास पैसे हैं, और वो उस टाइम पे आ रहे हैं। और मुझे इनकम टैक्स से बहुत बड़ा फटका लगा था, और 50,000 का मेरा फाइन लग चुका था, मुझे पता नहीं था। somehow somebody came and told me, लाइक पता नहीं, हाँ मैंने मेरी सीए को कांटेक्ट करा, मैंने बोला कि यार ये ऐसा ऐसा सीन है अभी न्यू जॉब का, तो क्या करना है। तो फिर उसने चेक करा, उसने बताया कि देखो तो तुमको तो यहाँ से भी पैसे मिलने हैं, तुम्हारे तो ये फालतू कट गए हैं। फिर उसके बाद उसने मुझे वो पैसे वापस ला करके दिए। Wow. एंड फिर उसके बाद कहीं और से मेरी कंपनी जिसमें मैं पहले काम करती थी, वहां पर वो लोग हर महीने मेरी सैलरी से 10K कट करते थे। एंड ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे पैसे मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे कभी भी, एंड आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन वर्क एंड आई नेवर लुक्ड एट माई सैलरी स्लिप। तो मुझे Okay. पता ही नहीं कि मेरी सैलरी से कट रहे हैं, और वो सैलरी अरियर्स बोल करके वो आए मेरे पास, ग्रेजुएटी के पैसे I आए। know. फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से लाइक मैं देख रही हूँ कि हर दिन मतलब 10 दिन तक लगातार आई एम गेटिंग, कहीं से 50,000, कहीं से 70,000, कहीं से 90,000, ऐसे करके 10 दिन तक लगातार आते रहे मेरे पास पैसे। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, ये क्या है। एंड हाँ, और मेरी जॉब भी लग गई, मतलब मैक्स अगर मैं जॉबलेस रही हूँ तो 2 दिन, वो है सैटरडे संडे, मंडे से आई ज्वाइन माई Imagine. न्यू जॉब। हाँ, Imagine. I love it. तो So now ये now हुआ I है। remember what I was about to say. हाँ जब हाँ तूने कहा ना कि क्या तूने वर्ड यूज किया था कि हम ट्रैक पे नहीं थे, या कुछ वर्ड क्या यूज किया था, मेरे माइंड में वही आया, टू एक्सप्लेन अदर्स एंड लेट मी एक्सप्लेन यू आल्सो। हम हमेशा अपनी लाइफ के बेस्ट के लिए ही ट्रैक पे हमेशा होते हैं। हम ट्रैक पे हाँ हमेशा रहे हैं बिकॉज वी आर डिवाइन सोल्स। हाँ हमने अपनी तरफ से जो कचरा क्रिएट कर रखे हैं और रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, तो हमें अपना रास्ता आगे दिख नहीं रहा। सो होपोनो बेसिकली कचरा क्लियर करके आपका विजन क्लियर कर रहा है। बाबा, यू आर मेड फॉर दिस, यू हैव दीज पावर्स, यू हैव दीज क्वालिटीज, यू हैव दीज टैलेंट्स, एंड पीपल विल लव टू पे यू फॉर दिस। तो रास्ता वो या होपोनोपोनो आपकी गंदगी क्लीन कर देता है हाँ आसपास की, ताकि आपको दिखने लग जाए व्हाट यू आर वर्थ फॉर। या इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आई एम रियली हैप्पी। योर गुड नेम, आई फॉरगॉट योर नेम। मेघा। मेघा।
I am really happy that you shared. People should really feel connected now. It is not a big deal. It is never a big deal. अभी किसी बंदी ने पूछा था जॉब के लिए. Understand, she breath, she breathed through her fear. वो निकलना जरूरी है, क्योंकि फियर कॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है. सब कॉन्शियस के लिए, यूनिवर्स के लिए फियर कुछ नहीं है. ये हमारी सोच क्रिएट कर रही है कि यार ये तो होता नहीं है. जैसे कि लोग कहते हैं कि वो स्टेज शो पे जादू दिखा रहा है. वो जादू नहीं है, वो ट्रिक्स है. वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दे आर देयर. ठीक है. हमारे कॉन्शियस माइंड के हिसाब से कबूतर डब्बे में से कभी नहीं निकल सकता, इसलिए हमारे लिए वो जादू है. बट कोई ट्रिक ऐसी कर दे तो कबूतर भी निकल सकता है. देयर इज अ वे दे हैव डन इट, राइट. सो ये हमारा पर्सपेक्टिव है. इट्स आवर कॉन्शियस माइंड व्हिच इज परसीविंग थिंग्स ऑन अ लिमिटेड लेवल. सबकॉन्शियस के माइंड इज लिमिटलेस, याद रखना. सो आई एम really happy and God bless you. Congratulations. Don't leave both the practices, neither Ho'oponopono and nor Hanuman Chalisa. Never leave them. It should work with you till eternity. हमारा टाइम प्रेशियस है, हमारा हर सेकंड प्रेशियस, और हम उसको अच्छी चीज के लिए यूटिलाइज करते रहेंगे ऑलवेज. ओके. सो नेक्स्ट स्टोरी आई एम वेटिंग फॉर यू. ठीक है. या नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन आई एम वेटिंग. या डेफिनेटली आई हैव अ लॉट ऑफ वंडर्स. एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि पता है जो नेगेटिव लोग थे ना, वो भी मतलब आपने एक चीज बोली थी अपनी वीडियो में, मुझे अच्छे से याद है कि अगर जब तक कचरा क्लीन नहीं होगा तब तक के अच्छी चीजों के लिए जगह बनेगी ही नहीं. तो ये चीजें हुई कि एक टाइम हुआ था जब होपोनोपोनो करते करते 2 महीने लगातार मेरे साथ सब बुरा हो रहा था. बट यू ऑल्सो सेड कि कंसिस्टेंसी रखना है, छोड़ना नहीं है. नहीं तो जो चीजें वॉट एवर नेगेटिव थिंग्स हैव कम टू द सर्फेस, दिल गो इनसाइड. अब वापस वो वापस से सिंक इन हो जाएंगी. तो आई डिड इट, आई स्टिल डिड इट. मतलब मैं रोते रोते करती थी. मतलब मेरे आंसू गिर रहे होते थे, बट मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, मैं होपोनोपोनो सुन रही हूँ. और मैं अगर ये चीज कहूँ कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो मेरे लिए रहा है वो रहा है कि जब मैं सो रही होती थी तो मैं ईयरफोन्स लगा करके या फिर अगर नहीं भी लगाए तो ऐसे फोन पे लगा करके साइड में एकदम लो वॉल्यूम में करके मैं सो जाती थी. एंड आई यूज टू स्लीप ऑन इट. एंड ओ माय गॉड, सुबह उठ करके जो मुझ में एनर्जी होती थी, मुझे लगता था कि निका ये इससे क्यों डर रही है तू, ये तू आराम से कर लेगी, ये तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. क्या हो गया अगर लोग नहीं है तेरे आसपास. मतलब आई लॉस्ट एवरी सिंगल फ्रेंड ऑफ माइंड. कोई मेरा फ्रेंड नहीं था. एंड मैं ये आई एम वेरी ग्रेटफुल नाउ कि उस टाइम पे कोई मेरा फ्रेंड नहीं था. नहीं तो अगर मेरे पास एक कंधा होता ना, सहारा होता तो फिसल जाना था. तो इजीली. और वो दैट पार्ट मेड मी वेरी मच स्ट्रॉन्गर. मतलब वो जो मैं अकेली रही हूँ ना, और उस टाइम पे मैंने किसी का सहारा ढूंढा भी नहीं, मैंने बस खुद पे वर्क करा. एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. दिस ओनली हेल्प्स अस. तेरी इस सिचुएशन को और इजीली समझाने के लिए मुझे एक और विजन आया, आई विल शेयर इट विद यू गाइस. आप ये मान लो कि आप गंदी नदी के अंदर डूब रहे हो. ठीक है. आप मरोगे तभी जब नोजी भी पानी के अंदर चली जाएगी और सांस नहीं ले पाओगे, आप तभी मरने वाले हो. आपको कुछ नहीं दिख रहा, आसपास कोई नहीं है नदी के आसपास जो आपको बचाने आ रहा है, और लेकिन आपकी बॉडी अंदर जा रही है. लेकिन आप, जैसे इसने बोला, सेल्फ वर्क करते रहो, जो होगा देखा जाएगा. ये करती रही. नोजी वॉज मेंटेन्ड अबव द वाटर. आपकी ब्रीदिंग चलती रही और आप बचे रहे विद द ट्रस्ट कि मैं ये करती रहूंगी तो एटलीस्ट नोजी अंदर नहीं जाने वाली, मैं पूरी डूबने नहीं वाली. एंड मैं करती रहूंगी तो ऑफकोर्स जैसे जैसे मैं गंदगी निकालती जाऊंगी, मैं हल्की होती जाऊंगी और मैं अपने आप सरफेस पे ऊपर आ जाऊंगी, मैं बच के भाग जाऊंगी. दिस इज द वे इट इज. इसको ऐसे इमेजिन कर लो तो तुम लोगों को कभी डर नहीं लगेगा और तुम लोग अपने इस सेल्फ वर्क पे फटाफट काम करके दौड़ पड़ोगे. आई एम वेरी ग्रेटफुल मेगा, हैट्स ऑफ. क्योंकि जब ऐसी फीलिंग्स आती है और हम अकेले होते हैं, इट इज नॉट इजी. इट इज not at all easy. So I'm proud of you and I'm grateful to you. सच में I love you for this. क्योंकि ये बारीक चीजें और ये बारीक मोमेंट्स ओवरकम करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन याद रखो नामुमकिन नहीं होता है. और इन हीलिंग्स के थ्रू आपको बहुत माइन्यूट चीजें अपने अंदर और अपने एनवायरनमेंट में पता चलने लगती हैं. ओ ये इसलिए हुआ, ओ ये ऐसा, ओ अब समझ आ रहा है. तो जब वो समझ आएंगी चीजें और पूरा गैमेट हाउ इट इज वर्किंग अराउंड यू, आपको आराम से शैलो जिंदगी निकलने में आसानी हो जाएगी. Yeah, and you know, I can see the difference
in people's faces, and the people, and the way how people have started behaving with me. They've started asking me कि यार what are you doing? Like you seem so happy. और इतना मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में रहती है लेकिन तुम फिर भी खुश रहती हो. एंड यू नो व्हाट, द मनी थिंग दैट आई हीड फॉर माई सेल्फ. तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि हाउ डिड यू डू इट, लाइक एक्चुअली आई डू इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल. तो फिर उसमें एक दिन मैंने अपने पापा को दिखाया. मैंने बोला पापा यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट. एंड तब पापा को लगता था कि ये सब गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट एंड ऑल. बट ही नेवर ट्रस्टेड मी. एंड एक दिन मैंने उनको दिखाया कि पापा नहीं है ऐसा, ट्राई, मतलब एटलीस्ट 1,000 रुपए ही आप इन्वेस्ट करके देखो कि वो 1,000 अगर आपके जाएंगे भी, अगर वेस्ट भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना. तो फिर उन्होंने माना नहीं, 4 महीने तक माना नहीं, मेरी कोई बात नहीं मानी. फिर उसके बाद जब ये जॉब वाला मतलब जो सीन हुआ, तो फिर मैंने बोला पापा ये मैंने खुद करा है थ्रू हनुमान चालीसा एंड होपोनोपोनो. मैं समझा रही तो उनको समझ में आता नहीं. इट्स तो ओके. हाँ, वो थोड़ा एक्सप्लेन, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो मैंने उनको ये बोला कि पापा आप एक काम करो, रात को सोने से पहले ना आप मंत्र जाप किया करो. और मंत्र जाप करने के बाद ना भगवान को बस थैंक यू बोलो जितना आपको मिला है उसके लिए. एंड मेरे पापा का मनी एनर्जी वैसे हील हुआ. मैंने बोला वाओ. कि हाँ, मतलब मैंने उनके ब्रेन को थोड़ा ट्रिक करा. मैंने बोला मैंने बोला कि ओके ओके आई डू द हीलिंग फॉर यू. बट मुझे नहीं पता था कि किसी और के लिए हीलिंग कैसे करनी है. मुझे इतना पता है कि हाँ, जो अपने आप को लोग खुद हील कर सकते हैं. तो मैंने बोला पापा रात को सोने से पहले करो, 11 दिन करो, बस 11 दिन ना ये वाला मंत्र जाप करना है. ऐसे ही मैंने उनको एक नॉर्मल सा मंत्र ओम नमः शिवाय दे दिया. मैंने बोला ये करो और फिर उसके बाद आप बोलना थैंक यू इतना कुछ देने के लिए, सब कुछ है हमारे पास, ये वो. तो पापा ये बोल करके सोने लग गए. और उसके बाद मेरे पापा लॉयर हैं और उनके उसके बाद उनको इतने अच्छे अच्छे केसेस मिलने लग गए. एंड जो हाँ, मतलब आई कांट रिवील कि ओके. कितना हील हुआ है. मतलब उन जो आई शुड से कि जो एनुअल चल रहा था ना वो मंथली हो गया है, मतलब सोच मंथली इनकम. सोच. हाँ, बट तो टेल ये पापा भी नॉट टू लीव इट. या नो, छोड़ना नहीं है. मेरे पापा कर रहे पापा थे. ये मेरे मैजिकल पापा है. करते हैं हमेशा से, वो हनुमान चालीसा करते हैं सुबह शाम. बट उनका पता है क्या था कि वो ही वॉज ऑलवेज इन द कंप्लेनिंग मोड. एंड कि हाँ ठीक है नहीं चल रहा है ठीक है, लेकिन भगवान सब पूरा कर देते. तो भगवान सब पूरा करते थे. कोई भी हमारे घर में कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ ऐसा कुछ नहीं आया, कभी कोई कमी नहीं हुई. मतलब जितनी जितनी जरूरत होती थी वो जरूरत पूरी हो जाती थी. तो ये चीज मैंने देखी. फिर मैंने बोला कि आप जैसा बोल रहे हो ना वैसा हो रहा है पापा. तो अभी बोलना छोड़ो और आप बोलो कि थैंक यू मेरे को इतना सब कुछ देने के लिए. हमेशा मेरा बैंक बैलेंस एकदम ऐसा, मतलब इट्स बूपिंग फुल ऑल द या टाइम. तो ओवरफ्लोइंग. हाँ हाँ. तो फिर ये करा पापा ने. एंड एवरीथिंग इज लाइक, मतलब, और मैं आपको बता रही हूँ जो इतने साल से, 4-5 साल से ऐसे पापा जो चीज बोल रहे थे उतना ही हो रहा था. और 4 महीने बस ही डिड इट. एंड ओवरफ्लो हो गया आज कुछ, है हाँ, ना. अलग ही सीन है बिल्कुल. हाँ. या और मतलब अब पहले ना पापा कुछ भी ऐसे लेने में कुछ ऐसा सोचते थे कि हाँ ठीक है 4-5 हज़ार की शर्ट, ओ माय गॉड नहीं, ये तो नहीं. नहीं, हाँ ये नहीं हो पाएगा. लेकिन अब बोलते हैं क्या हो गया, अगर अच्छी है लेते तो ले ली. तो सी द चेंज. ये सी द चेंज. हाँ मुझे ये खुशी हो रही है कि पेरेंट्स के साथ पता है क्या मजा आता है. पेरेंट्स कभी कभी क्या होते हैं, बच्चों का चल ना इसका दिल रखने के लिए इसका एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, तो अटैचमेंट नहीं आती. हाँ अच्छा ही तो हाँ बोल रही है, फिर पूछेगी हफ्ते बाद, फिर मुझे पूछेगी, फिर सिर खाएगी. कर लेता हूँ, हफ्ता देख लेता हूँ. तो वो बिना डांटे नहीं कर लेते हैं कि इन लोगों को समझ तो है नहीं, पता हाँ नहीं क्या बोलते रहते हैं, मैं कर लेता हूँ. कई बार पेरेंट्स इसलिए हाँ कर लेते हैं जस्ट टू मेक अस हैप्पी. हाँ और देन दे रियलाइज कि तेरे ये तो काम कर रहा है. ये तो काम कर हाँ रहा है. हाँ. ग्रेट यार, अरे ग्रेट. बहुत. और मैंने तो अपने पापा को इतना ट्रिक करा, मतलब आई एम सो सॉरी इट इज ओके. कि वी डूइंग फॉर गुड. पता नहीं. गुड फॉर हिम. वो इंस्टाग्राम पे है और मेरी मम्मी भी इंस्टाग्राम पे वो लोग सही बात तुरंत, है. मैं कुछ स्टोरी डालती हूँ ना तो दे जस्ट वॉच इट वो एकदम भी कर. इमिडिएटली. अभी मेरी मम्मी बस वो भी इंस्टा ही चला रही थी अपने क्या रूम पता में. वो लाइव आ तो गई हो, यू नेवर नो कि मेरी बेटी लाइव है, आई होप पहुंचो. आई That's होप शी okay. इज नॉट. No, it is okay. ना ना ना, let them watch. Why? Because they will understand कि see, मम्मियाँ नहीं करती थी पहले हमें कुछ भी खिलाने के लिए. अब मैं अभी अपने बेटे के लिए नहीं करती हूँ, ये खाता नहीं है, इसको आटे में डाल दो, रोटी में डाल दो, डाल खिला दो.
उन्होंने भी किया हाँ है, that is also tricking. हाँ Tricking for your highest and best is always good for us. So it's कोई अच्छा, बल्कि अच्छी बात है, when they will see कि there is a reason and scientific reason behind it, we should understand. You never know, they come and ask you and they love to understand how things are working. That is important. या I am happy. मेगा तूने दिल खुश कर दिया मेरा. और एक और Amazing. चीज बताती हूँ, हाँ लास्ट चीज। बता. मुझे ना आईफोन लेना था, बट मैं ना हमेशा से ही चाहती थी कि यार इतने सारे पैसे इस फोन में मेरे को नहीं डालने हैं। मतलब मुझे लगता था कि मैं आईफोन लेने की जगह मैं शेयर्स ले लेती हूँ, हाँ लेकिन आईफोन नहीं लूंगी मैं। ऐसा मतलब मुझे ये लगता था कि शेयर्स मेरे को लगता है ज्यादा बेटर है। तो समहाउ जब मैंने नई कंपनी ज्वाइन करी, आई गॉट दिस आईफोन एज अ गिफ्ट। I love it. देख लो, पैसे भी एंड खर्च हुए और हाँ आ भी गई. ग्रेट, वेरी हाँ, नाइस. तो अब बहुत तेरे को सारी मजा चीजें। आता है, तेरे को अब इस चीज का नशा हो गया. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. हाँ नहीं, नशा नहीं। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि अब ना इन सब चीजों से डिटैचमेंट ही हो गया है। अब लगता ही नहीं है कि हाँ ये यही चाहिए. मटेरियलिस्टिक ट्रू चीजें ट्रू ट्रू. चाहिए। हाँ मतलब अब लगता है कि अपने आप को और स्पिरिचुअली कितना ग्रो करूं मैं। और आई डोंट वांट टू डू इट फॉर माई सेल्फ, आई वांट टू डू इट फॉर अदर्स। कि मैं अपने पेरेंट्स को हील करूं, अपने ब्रदर को हील करूं, या अपने फ्रेंड्स को हील करूं। जितने भी हैं मेरे फ्रेंड्स फैमिली, मैं सबको बताती हूँ। एंड करना ना करना उनके ऊपर है। उनके एक मेरी ऊपर है. है, हाँ एक कजिन है मेरी, मैंने उसको बताया एंड शी हैज बीन फॉलोइंग इट। तो अभी व्हेन शी हैज स्टार्टेड डूइंग इट तो कह रही है कि यार अभी तो अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा हो रहा है। मैंने कहा तू करती रह बस। अब देख, अब पूरा हो रहा है तो तेरे को ये पता चल रहा है ना कि व्हाट्स नॉट फॉर यू, या फिर तेरी तू जो गुड. ऑप्शंस कंसिडर कर रही है, तो तेरे को पता चल रहा है कि ये नहीं ये नहीं चाहिए, चाहिए। ये नहीं चाहिए. हाँ गुड, वेरी गुड. तो फिर बोल रही हाँ यार बात तो सही कही यार, इतनी पॉजिटिव कैसे रहती है तू। मैंने कहा पॉजिटिव रहने वाली बात नहीं है, मतलब ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। तो शी हैज बिन रिलीजियसली फॉलोइंग व्हाट आई एम फॉलोइंग. सेइंग। नहीं, या दिस इज फाइन. पता है ये क्यों होता है मेगा? सुन, आप हम्म जब क्लियर हो जाते हो ना, जब आपकी गंदगी हाँ हटके और आपका ट्रैक खाली होके रेडी हो गया है, अब आपको अपना ट्रैक दिख रहा है क्लियरली, और आपको पता हम्म है कि ये मटेरियलिस्टिक चीजें कि पीछे नहीं भागना. भागना मुझे बेस पे है हाँ जो इम्पोर्टेंट है भाई, हाँ सोल सोल कनेक्शन का. ये चीजें अपने हाँ आप चुंबक की तरह हमारे पास आएंगी, मांगनी नहीं हाँ पड़ती. एग्जैक्टली जैसे किसी ने पूछा एग्जैक्टली। प्रिया आपने बीएमडब्ल्यू, मैंने बीएमडब्ल्यू के लिए कभी कुछ एफर्ट नहीं किया. मैं अपने हम्म अपनी वाइब्रेशन पे एफर्ट कर रही हूँ, तो वो अपने आप आई है मेरी लाइफ में. एक नहीं दो आई है, हाँ अपने आप आई है. हाँ सो दिस वर्क्स वंडरफुल. आप जो तूने ये वर्ड बोले हैं कि अब मटेरियल चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता, दिस इज नेचुरल. हम्म अब आपको हम्म, मटेरियल के लिए वो अटैचमेंट नहीं आती कि यार ये तो चाहिए ही चाहिए, हाँ क्योंकि आप हाँ इतने सेल्फ कंटेंटेड और सेल्फ हैप्पी और इतने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करके लविंग डविंग चल रहे हो कि वो चीजें. अभी क्या होता है लोगों को जो हील्ड नहीं है, दे फील वो मिलेगा तो खुशी आएगी, हाँ और अभी हम खुश हैं. हाँ So, एंड आई थिंक हमें मैं खुश हूं तो वो मिल जाएगा। अपने आप ही आएगी, अपने आप आएगी. हाँ राइट नाउ दिस इज द राइट वे. हाँ ये है या हीलिंग के, ये है हीलिंग के साइड इफेक्ट, ये है हीलिंग के रिजल्ट्स. एंड दिस हाँ इज अमेजिंग. आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल तूने शेयर किया. बिकॉज कई थैंक बार क्या यू। होता है, मैं ही बोलती रहूंगी ये तो टीचर है, इसको अपना चैनल चलाना है इसलिए ये बोल रही है. एक हाँ नॉर्मल पर्सन, आम बंदा बोलता है, मैं भी आम हूँ इन द सेंस, somebody who is not into preaching such things, जब वो बोलता है then people feel connected. इसलिए I appreciate and promote people. मेरे नाम से मत करो, अपने लिए करो, लेकिन शेयर करो. let it be a small bit of thing, share it, people feel connected, and the more we do, we are doing भगवान की सेवा only to या helping people realize, come on the track and be life. अच्छी life और manifested life is easy. उसमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते. एफर्ट्स अपनी गंदगी साफ करने से करने पड़ते हैं. और जो लोग ये सोचते हैं ना कि खुश हम बाद में हो जाएंगे, तो ऐसा मतलब बिल्कुल बात भी कभी नहीं नहीं आता. सोचना चाहिए। हाँ दुकान पे लिखा एग्जैक्टली होता है ना, आज नकद कल उधार. तो फिर जब हाँ भी जाओगे कल उधार ही है, उधार कल ही है, कल ही है, तो खुशी हाँ। भी कल ही होती जाएगी. जब मैं लोगों को बोलती हूँ ना जिनकी ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होती है, एंड जब ऐसे मेरे हाथ में आईफोन देख करके और फिर ऐसे महंगी महंगी चीजें देख करके लोग बोलते हैं तेरे लिए तो आसान है, तू तो बोल ही सकती है क्योंकि तू तो खुश है। मैंने कहा यार थैंक यू फॉर एक क्रिएटिंग टाइम अस. था। थैंक यू फॉर मैंने क्रिएटिंग फॉर अस.
मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। मैं जब मेरी जॉब जाने वाली थी, नोटिस पीरियड खत्म होने वाला था, तो 6 अक्टूबर को मेरा लास्ट डे था। 2 अक्टूबर तक मैंने खूब पढ़ाई करी, खूब इंटरव्यूज दिए। 2 अक्टूबर के बाद ना मैंने बोला कि मैं नहीं दे रही हूँ, बस मेरा दिमाग हो रहा है खराब, मेरी खुशी छिन रही है, अब मैं नहीं दूंगी। 2 अक्टूबर के बाद से मैंने उठ करके, मैं बस नहाती थी, ब्रेकफास्ट करती थी और पूजा वूजा कर लेती थी। उसके बाद मैं बैठ करके देखती थी नेटफ्लिक्स, खाना गुड ऑर्डर करती थी बाहर से, गुड। शॉपिंग करने जाती थी, घूमने जाती थी। और मैंने 6 अक्टूबर तक एंजॉय करा है। और हाँ, ये भी चीज है कि मैंने प्रेयर्स अपने करने नहीं छोड़े थे, और इनफैक्ट बढ़ाए थे उस टाइम पे। और मैंने 2 अक्टूबर को 100 हनुमान चालीसा करी थी। एंड उसी टाइम पर मैंने प्रे करा था कि भगवान प्लीज, ये है कि मेरे को जॉब में रखो चाहे ना रखो, आप मेरे साथ रहो, और मैं खुश हूँ, मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ, मेरे को पता है। और मैं बस हैप्पी रहती थी उस टाइम पे। एंड मेरे पास तो जॉब नहीं थी यार, मेरे पास रीजन ही नहीं था कुछ खुश होने का। मतलब सिर्फ जॉब की बात नहीं, और भी चीजें नहीं अच्छी चल रही थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे खुशी को चूज करा। मैंने बोला कि यार मैं हूँ मेरे साथ, मैं मतलब आई हैव क्लोथ्स ऑन माय बॉडी एंड आई एम ईटिंग वेल। मैं इतनी प्रिविलेज्ड हूँ अभी भी, जॉब जाने वाली फिर भी, कि आई कैन ऑर्डर एंड ईट, आई कैन गो आउट एंड शॉप फॉर माई सेल्फ, जो भी चाहिए वो। तो मैं खुश क्यों ना रहूं। और फिर ट्रू। वो जो 4-5 दिन मैंने इतनी अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करी है, मूवी देखने जाती थी मैं, बहुत एंजॉय करा मैंने। और उस टाइम पर फिर उसके बाद जाकर के फ्राइडे के बाद सैटरडे आई गॉट द जॉब एंड आई डिड नथिंग। मतलब जो 4-5 दिन थे उसमें कुछ नहीं, मैंने कुछ नेट पे खोल करके भी नहीं देखा, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू दिया भी नहीं। और क्योंकि वो इट्स जो कॉल्ड सैटरडे को जो इंटर डिटैचमेंट एंड इट्स कॉल्ड या फ्रीडम। अब ये मैंने इतने सारी हसल बसल नहीं करनी। आई वांट टू गिव माई हाँ सेल्फ अ ब्रेक। या ये मैं जो एग्जाम्स देते हैं उनको बोलती हूँ, प्लीज थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, रिलैक्स हो जाओ, मस्ती करो, खाना खाओ, फ्रेंड्स को हाँ, मिल के आओ, डोंट लीव ऑल दिस थिंग। ये सबकॉन्शियस माइंड को इनको आराम लगता पसंद है। है, आराम से आती हैं चीजें, हाँ, चीजें इनको रिलैक्स लगता है होके कि आती हैं। वो हम 1 घंटा कैसे वेस्ट करते हैं खुश रहने में, लेकिन उनको नहीं पता है कि जो 1 घंटा वो लोग खुश रहने में अगर वो लगाएंगे तो उनको 10x मिलेगा वापस। मिलेगा। यस, ये दिस इज द तो फैक्ट। इजी, मैंने चीजें एफर्टलेसली, बिना एफर्ट के ही आती हैं चीजें। हम हम्म जोर लगा रहे होते हैं क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं, हम अटैचमेंट करते हैं, हम पावर लगा रहे हैं, उससे कभी कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे को भी अगर आप फ्रीडम स्पेस देते हो तो वो आपके पास आता है। आप उसको दबा हम्म के रखोगे, ये नहीं करना वो नहीं करना, कभी आपके पास आएगा ही नहीं। हम्म इट इज सेम लाइक दैट, गिव स्पेस, ब्रीद इन, रिलैक्स। क्या हो जाएगा, हफ्ते का खाना है मेरे पास, हफ्ते का खाना है, हफ्ते का किराया दिया हुआ है, हफ्ते का सब कुछ दिया हुआ है, खा सकती हूँ, छोड़ दे सब कुछ। हम्म बॉडी भी हाथ पैर मारना छोड़ती है तो पानी पे फ्लोट करती है। हम्म हम डूबते अपनी हम्म। ही वजह से हैं, बॉडी तो फ्लोट करने के लिए बनी है। सेम वे, आई एम हैप्पी यार, मजा आ गया मेगा, और मजा आ गया उस मुझे। उस टाइम पे जब मैं परेशान थी ना, मैंने आपको मैसेज भी करा था कि मैम ये सब प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा वैसा। तो आपने मुझे बस एक लाइन में आंसर करा था, कहा था तुम हो पोनो करो, करती रहो। मतलब एग्जैक्ट मेरे को वर्ड याद नहीं है, बट मेरे को हाँ, दिस स्टेड विथ मी। एंड मैंने पहले तो मुझे ना, पहले मैं ऐसे इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड तो थी ही उस टाइम पे। मैंने बोला कि क्या यार, ये एक ही सब चीज थोड़ी कुछ बोलती होता रहती है। है। हाँ, ये होना होता तो हो जाता अभी। 1 महीने से कर रही हूँ मैं, फिर भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैंने सोचा कि यार ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये फॉर्मूला इनका, तो अभी मैं भी करके देखती हूँ। फिर उसके बाद आप लाइव आए थे किसी के साथ, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है, कोई डिम्पल दीदी डिम्पल। थी। हम्म, हाँ जी, कोई थी। हम्म। तो फिर वो आपने बोला कि लोग करते हैं हो बोनो बोनो, फिर बोलते हैं कि हम, मैं पूछती हूँ कितने दिन करा, 10 दिन करा बस फिर छोड़ दिया, ऐसे करके कुछ आप बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि ये तो मैं भी कर रही हूँ, सेम गलती, ये तो भाई कहीं ये मेरी बात तो नहीं कर रही। ट्रू। तो आई डोंट हैव टू डू दिस। एंड मुझे अभी और मेहनत करनी है अपने आप पर, और करना है, मतलब मेरे को हमेशा करते ही रहना है। क्योंकि ये चीज मैंने रियलाइज करी है कि इट्स अ नेवर एंडिंग यस। प्रोसेस। क्योंकि आप एक और चीज बोलते हो अपने वीडियोस में कि आप अपने घर में हर रोज झाड़ू लगाते हो हम्म। ना, तो अपने आप को हील क्यों नहीं करना हर दिन, वो भी तो जरूरी है। तो इसीलिए ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आप एक रिलीजियस पर्सन हो, और आप लोगों को लगता है कि आप लोग खुद को होपोनोपो में, चलो नहीं है विश्वास,
एक तरह से मान लेते, बट हाँ ठीक है, भगवान को मानते हो तो आप हनुमान चालीसा कर लो। मंत्रास आल्सो वर्क द सेम वे, होपोनोपोनो इज आल्सो अ या mantra. यस यस यस। So और everything, फॉरगिवनेस try प्रेयर, everything. हर मजहब में फॉरगिवनेस की प्रेयर है, हाँ हर हर मजहब में है। हाँ तो तेरे लिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है, वेनू ने, जिसको जॉब ट्रैप करनी है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मेघा, व्हेन शी रिजाइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज अनहैप्पी फ्रॉम हर करंट जॉब, दिस इज व्हाई शी रिजाइंड, राइट? no सो बीइंग no अनहैप्पी वाज नॉर्मल एट दैट पॉइंट। नो, आई वॉज नॉट अनहैप्पी। एंड मैं बता सकती हूँ, वैसे मैं इन्फोसिस में थी, एंड लोगों को पता है, लोगों की ऐसे ड्रीम कंपनी होती है इन्फोसिस, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद इन्फोसिस। मैं बता नहीं सकती मैं अपनी जॉब कितना एंजॉय करती थी। मेरे कलीग्स बहुत अच्छे थे, मेरे मैनेजर अच्छे नहीं, मतलब मैं नहीं कहूंगी कि अच्छे नहीं थे, बट हाँ ठीक है, मैंने भी कुछ गलतियां करी थी तो मुझे डांट पड़ती थी। तो मैंने कभी उस चीज का बुरा नहीं माना। मतलब जैसे आज डांट पड़ी है ना, मैं कल जाकर के उनसे अच्छे से बात करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो चीजें मेरे काम आई। तो मेरे मैनेजर मतलब ठीक है, काम को लेकर के स्ट्रिक्ट थे, वो हर मैनेजर होता है, बट वो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी थे पर्सनल लेवल पे। मैंने जब उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मेरा थोड़ा पर्सनल ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उन्होंने समझी वो सारी चीजें। मैंने उनसे वर्क फ्रॉम होम मांगा, उन्होंने दे दिया। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। जो चीजें अच्छी होती थी ना, मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती थी। मैं कभी उन चीजों को माइंड ही नहीं करती थी जो बुरी हो रही है। मैं ट्रू, हमेशा बोलती थी यार फोकस क्लियर ठीक है, रखो। कल डांट पड़ी, हाँ कल डांट पड़ी, आज वर्क फ्रॉम होम मांगा, इन्होंने दे दिया, ये कितनी अच्छी बात है। थैंक यू भगवान, थैंक यू या इतना अच्छा मैनेजर देने के लिए। किसी कलीग से हेल्प मांगी, उसने पूरा काम ही करके दे दिया, तो मैं थैंक यू बोलती थी। तो ये अपने आप निकलता था, और पता है जितना थैंक यू बोलती थी ना, उतनी अच्छी अच्छी चीजें होती जाती थी। तो मैं कभी भी अनग्रेटफुल नहीं रही हूँ। आई ऑलवेज लव द कैंपस अपने ऑफिस का। मैं घूमती थी, मैं बोलती थी वाह यार कितना अच्छा है, ऐसा किसी कंपनी में मिलेगा। आई एम सो ग्रेटफुल कि आई वर्क इन दिस या कंपनी। इसको और मैं मैंने वही अभी वही वीनू को मैंने बोला कि जो हाँ पॉइंट्स अच्छे हैं उन पे फोकस करना है, स्टार्ट एंजॉयिंग दैट, तो चीजें अपने आप या तो इसी ऑफिस में बदल जाएंगी या नई अपॉर्चुनिटी अपने आप हाथ में आ जाएगी, तो ये छोड़ना अपने आप हम्म आसान हो जाएगा। बट फोकस, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही हाथ में है, याद रखो ये फ्यू सेकंड मेरे हाथ में है। हम्म ये एक सेकंड भी जो निकल गया, जब मैंने बोला ये एक सेकंड, ये पास्ट हो गया। हम्म सो दिस इज द हम्म ओनली मोमेंट वी हैव टू एंजॉय। तो उसमें वही चीजें देखो या उसी पे ध्यान डालो जो अच्छा है। खाली पेट मत देखो, रसगुल्ले देखो, ओ रसगुल्ला है, अब वो हम्म एक ही है कोई बात नहीं, एक ही क्वालिटी है कोई बात नहीं, एक पे फोकस रखो। हम्म। दिस इज हाउ इट इज। ग्रेट, मजा आ गया और आज, पता तूने है आज वहाँ दिन बना दिया मेरा। इन्फोसिस में जो जो चीजें मेरे लिए अच्छी चल रही थी, जैसे फूड वाज वेरी नाइस, और सब सब्सिडाइज्ड होता था हमारे लिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होता था। मतलब सब कुछ हमें कम रेट से मिल जाता था। तो मैं यही सोचती थी कि यार मैं बहुत थैंकफुल जो मैंने यहाँ काम करा, अभी इतना एंजॉय करा। अब खुद के पैसे मेरे को खर्च करने पड़ेंगे कहीं और जाऊंगी तो। बट जैसे ही मैंने दूसरी कंपनी, अभी जो जिस कंपनी में मैं हूँ, मैंने जहाँ ज्वाइन करा है, यहाँ पे मेरे को मील रीइंबर्समेंट मिलता है। मेरा मिलता है, फूड का भी कोई खर्चा खर्चा नहीं नहीं है, है। और मेरा इंटरनेट का भी कोई खर्चा नहीं है। मेरे को रेंट अलाउंस भी मिल रहा है, तो वो भी मेरा कवर हो खर्चा जाता नहीं है। है। तो और फोन आ गया, मेरा कोई आईफोन खर्च, पसंद का। हाँ आईफोन आ गया। सी, तूने और नोट किया कि जो चीज दिमाग में जहन में नहीं भी थी वो भी मिल गई, हाँ, क्योंकि मैं क्योंकि उसके लिए गॉड ग्रेटफुल थी। नंबर वन, और भगवान जी को ज्यादा पता है हम किस में अच्छे खुश रहने वाले हैं और किस में रहने वाले हैं। हम बस खुशी खुशी एक्सेप्टिंग मोड में नहीं होते, हम तर्क वितर्क हम्म डाउट डर वो घुसाई जा रहे हैं, तो वो नहीं होएगा बाबा। उसने सरेंडर किया, हम्म मेघा ने कंप्लीटली सरेंडर, भाई नहीं कर रही जॉब, छोड़ दो, देखा जाएगा, मिलती मिले नहीं तो ना मिले, मैं रेस्ट कर रही हूँ कुछ दिन के लिए बस। एंड हम्म वर्कड फॉर हर। ये इजी यार, जितना रिलैक्स करती है पानी में अपने आप रिलैक्स होते हो तो हम्म ठीक है ना। मजा आ गया हाँ मेघा। और तेरी सक्सेस स्टोरीज मैं जब भी इंस्टा पे आऊंगी, जब तेरे पास नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी होगी फटाफट आ जाना। हाँ हाँ, है मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं वो ना इंस्टा में सबके सामने आई नहीं बता सकती हूँ। अंडरस्टैंड, नो वरीज, आपको पर्सनली बताऊंगी नो मैं। वरीज, इंस्टाग्राम पे मतलब मुझे भेज। दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि आई हैड अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, बट वो भी चला गया। मतलब मेरे आज जितने फियर्स थे सब, आज नहीं इससे पहले भी, चला गया, मतलब ओके। पता नहीं यहाँ अभी इससे पहले मुझे कहीं जाना था, आई हैड टू स्पीक, एंड मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से स्ट्रेंथ आई है। उस टाइम पे बोलने से पहले मैं हनुमान चालीसा सुन रही थी, एंड मुझे भीड़ ही नहीं दिखी। जो मेरे
मतलब साथ में सोच मतलब जिन्हें मुझे एड्रेस करना था वो भीड़ मुझे दिखी नहीं, और मैंने इतना अच्छा अच्छा बोला बोला। कि लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे इट वाज फर्स्ट टाइम जो तुम ऐसे बोल रही थी, लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा है कि मतलब तुम मतलब ऐसे जाकर के यू कीप And स्पीकिंग ऐसा एड्रेसिंग। that day you realize कि public speaking is my forte man, मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं एਵੇਂ अपने डर की हाँ वजह से नहीं बोल पा रही थी। हाँ एग्जैक्टली, और मुझे नहीं पता कि हाउ वर्ड्स केम आउट ऑफ माय माउथ, एंड यू नो पता नहीं मुझे खुद वो हो विश्वास नहीं गया। होता अभी तक कि हाँ, एंड एवरीबडी वाज वेरी इम्प्रेस्ड, एंड जो मतलब बहुत बड़े हैं एज में वो तक आकर के मुझे बोल रहे थे कि मतलब जो भी तुमने बोला वी रियली लाइक इट, एंड यू वर ऑन पॉइंट एंड यू वर सो राइट व्हाट एवर यू सेड। मतलब पता नहीं मजा आ कैसे, गया। और अभी भी इंस्टाग्राम पे पता नहीं मैंने क्यों बोला आपको कि मुझे मतलब लाइव आना आना है है। या मेरे को अपना कुछ शेयर करना है। मैं तो ऐसे ही घर पे बैठी हुई थी अभी, मतलब बाल वाल भी मेरे सही नहीं है, मैंने बोल दिया, मैंने कहा लेट्स सी, लेते हैं अगर नहीं मुझे लेते। लाइव, वैसे मुझे कोई हाँ वो नहीं था कि हाँ नहीं भी लेते कोई बात नहीं यार, मैं पर्सनली शेयर कर दूंगी उनसे, मुझे तो शेयर प्रिया दी शेयर से करना करना है है। तो हाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, बिकॉज पीपल रियली नीड, पीपल अराउंड अस रियली नीड दिस पीस ऑफ वर्ड्स एंड एडवाइस, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सिंपल है यार, ये भगवान जी ने लॉ इतने अच्छे बनाए हुए हैं, समझो और फटाफट करो, रिजल्ट्स मिलेंगे हम्म। पक्का पक्का। और पता है 2 घंटे हम एक यहाँ और थे। चीज मैं बताती हूँ कि सक्सेस स्टोरीज जब सुनती थी ना मैं आपके चैनल पे या किसी की भी, किसी तो की मुझे भी। लगता था ये फेक है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा तब ये लगता था मुझे। लेकिन मैं आपको लगभग 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आपकी वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, आप बीच में आप वीडियोस डालना भी आपने बंद कर बंद दिया किया था। था, हाँ। तो फिर हाँ, तो फिर मैं सोचती थी यार कि इन्होंने क्यों वीडियोस डालना बंद कर दिया, क्या पता मतलब इनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर हाँ। रहा। होता मैंने है, सोचा आता है, था, नेचुरल है यार, ये दिमाग में आता है। मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैंने बोला कि चल यार कोई नहीं, प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में आती है, वी आर ऑल ह्यूमन, और ठीक है आई भी होंगी उनकी, तो फिर वो थोड़ी ना सबको आके बताएंगे अपनी बताएंगे। प्रॉब्लम्स, ठीक है यार, हो गया हम्म। अभी, मैं अपना काम करती हूँ। और उस टाइम पे मतलब मेरे को ना थोड़ा होने से ना थोड़ा विश्वास हट गया था, और मैं हनुमान चालीसा लेकिन कर ही रही थी, हम्म। लेकिन समहाउ एक दिन योर वीडियो पॉप्ड अप, और हम्म। आपने वो लाइव करने का पूरा मतलब एक महीना आपने लगातार लाइव करा था। लाइव किया, सितंबर बर्थडे मंथ हाँ किया। हाँ, तो फिर तब मैं ना कर नहीं पाती थी क्योंकि मैं मुझे पढ़ना होता था। तो तब मैं ये सोचती थी, मुझे फोमो होता था कि यार इस टाइम पे मुझे पढ़ना होता है, इस टाइम पे तो मैं फ्री होती हूँ ऑफिस से, अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगी तो फिर मैं कब पढ़ूंगी जॉब के लिए। तो मैं ना करती नहीं थी, मतलब मैं वो देखती नहीं थी लाइव आपका, लेकिन मैं सुबह कर लेती थी हो पोनो पोनो, तो मेरे को ये लगता था चलो कोई नहीं, अभी तो आगे बहुत लाइव होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट अभी अपने लेवल पे मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना उतना कर लेती हूँ। कर एक लो। घंटा नहीं है मेरे पास, 10 मिनट है तो मैं 10 मिनट ही कर लेती हूँ। लेकिन मुझे मतलब सच में रिग्रेट है इस बात का ना, एंड सी, एंड पता है ये चीज भी है कि मैं सोचती थी कि यार अब तो जॉब लग गई, अब यार प्रिया दीदी पता नहीं करेंगी कि नहीं करेंगी लाइव, और आज आपका लाइव मैंने ज्वाइन करा, अभी इससे पहले जितने भी लाइव होते थे ना नहीं मैं कर बाहर होती थी, मैं पाए। ज्वाइन नहीं कर पाती थी, और आज ज्वाइन करा आपने आज ही अनाउंस कर दिया, तो देख ले, और आज ये तो, सारी और चीज। तो आज साथ भी रही है इतनी देर हाँ तक, ऑलमोस्ट हाँ। पौना घंटा। दैट वाज नाइस। ओ माय आई एम गॉड। रियली हैप्पी, मजा आ गया। बट तूने हाँ बाकी सक्सेस स्टोरीज मुझे इंस्टा पे भेजनी है, आई वुड लव हाँ। टू रीड इट। यस। आई विल शेयर इन अदर फॉर्म, बट आई थिंक पीपल शुड नो इट। मैं घुमा यस। फिरा के पहुंचा दूंगी लोगों तक, अपना काम पहुंचाना है हाँ और सबको समझाना है यार, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी एंड हाँ। प्राउड ऑफ यू। कीप रॉकिंग एंड डोंट लीव योर रूटीन एट ऑल। ठीक है, थैंक यू। चलो, I यस। think I'll end now. It's already 2 hours. या। Great. Thank you, ओके। Megha. You made my या। day. You made everybody's day. I'm यू proud of you. यू मेड माई लाइफ बेटर। It is okay. You आई did जस्ट yourself. वेट। You did या yourself. Efforts are yours. या। ठीक है? कैटलिस्ट वाज यू, It's थैंक यू great. सो मच। Thank you, darling. I love you. Bye या। bye. I'm ending the बाय। live, guys. See you. Bye या। bye.